Um, hey everyone, my name is Abhiram and I am a software developer with 11 years of experience, and I'm working on a health sector related Okay. Abraham, your voice was breaking a bit. Hopefully it will be better. Okay, sorry about Now that. it's better. Now it's better, I think. Okay. Yeah. Aman. Yeah, hello sir, namaste. Good evening to all of you. Myself, Aman Raj Vasho, pursuing Bachelor of Arts last year from University of Allahabad, and also preparing for my MBA entrance exams. Thank you. Thank you. Rizal, please. Hello everyone, my name is Sejal Jain and I'm currently working as a country manager in learning while traveling. I've completed my graduation from Tirthankar Mahavir University and I belong to Ashoknagar, Madhya Pradesh. Thank you. Thank you. Mr. Karthik. Are you there? Yes. Hi, good evening, everyone. I'm Karthikeya Mathur. So currently I'm stationed in Jodhpur and I'm pursuing my MBA from Jodhpur itself. And I'm also assisting my father in a family business. Thank you. Thank you. Atul sir, please. Namaste. My name is Atul Kumar. I'm based in San Jose, California, and run a company called Ren Ventures and few non-profits in the field of entrepreneurship. Thank you. Saurabh. Hi everyone, this is Saurabh Dayal. I am the founder of Clear Deco, and I carry almost 7-8 years of experience in sales, marketing, technology, working with Paytm and Sale and Wipro. Looking forward. Thank you. Thank you. My name is Vishal. I'm founder of Learning While Traveling. We are into global startup exchange program, and we also run a online school for 3 to 12 years old. And we have also doing something on English speaking for college students mainly. We have one more person. Oh, Nandan. Nandan, please introduce. You just joined. Nandan, are you there? Never mind. Okay, so एक थोड़ा सा detailed. Let's talk a bit detail in one of the thing, or let's say we all are doing something or the other. We can maybe talk in detail about one of the thing to start. So इसमें let's start from Abhishek Janta. So Abhishek Janta, येन के बारे में थोड़ा सा जनता को बताओ क्या है ये YEN, क्यों शुरू हुआ, क्या पर्पस है. अतुल सर, you can feel free to like, do a like elevator pitch kind of 1 minute. Yes, तो बेसिकली एन है इसमें है कि यंग एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क. तो अभी तक जो संस्था था एंटरप्रेन्योरशिप के से रिगार्डिंग बेसिकली टाई हो गया या CII हो गया, इनकम हो गया, ये बेसिकली टायर 1 या मेट्रो सिटी पे फोकस करता था. पर हम इस टाइम घर गए थे, गांव गए थे, तो हम क्या फील किया कि बहुत सारे लोग जो है मतलब 40,000 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपया उनके पास पैसा है और चाहते हैं कि उतना इन्वेस्टमेंट लगा के अपना कुछ स्टार्ट करें, पर उनके पास आइडिया नहीं है कि वो क्या स्टार्ट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है. बहुत सारे लोग हैं कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुने हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें. उनके पास जो भी पैसा है वो खर्च कहाँ करें. ठीक है, तो उसी को लेकर हम अतुल सर से बात कर रहे थे कि ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या. तो अतुल सर बोले कि हम लोग ऑलरेडी एक चलाते हैं एन, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं. तो उसके बाद बूट कैंप टाइप से फर्स्ट बूट कैंप था हम लोगों का, जिसमें 400-500 रुपये एंट्री फी भी रखे थे लोग, और अच्छा खासा 10-11 आदमी आए थे लोग. और वहां से उस बूट कैंप से मेरे को बिजनेस भी मिला, जो आज मेरा
बिहार में इनोवेशन सेंटर चल रहा है, वो एन का ही देने की आज हम अपने इनोवेशन सेंटर लाखों का इन्वेस्टमेंट से चला रहे हैं, और उसे भी बड़ा कि नेटवर्किंग मिल गया IITian से लेकर IIM हर जगह रिसर्च। तो हम, मेरा मोटिव क्या था, उसके बाद और ज्यादा हमको मोटिवेशन मिल गया कि जब हमको मिल सकता है तब तो किसी को मिल सकता है। ठीक है, तो उसी मोटिव को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लोग कि ये चीज दिल्ली में भी रहे, USA में भी रहे, कैलिफोर्निया में भी रहे, और छपरा और सिवान या आसनसोल को बोलिए उस लेवल का गांव तक भी रहे, कि वहां तक भी कभी भी लोग कोई कुछ करना चाहता है तो उस बेसिस पे भी हम लोग सपोर्ट करेंगे लोग। और आगे मेरा यही प्लानिंग है कि हम लोग जो स्टार्टअप को लेकर आएंगे लोग, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ा शहर का हो, यहाँ तक कि कोई 30-40 शहर का भी कोई स्टार्टअप कर रहा है उसको भी हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी किस फॉर्मेट में, लाइक क्या क्या अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली? यस, लेट्स से कोई सेजल आ जाती है तुम्हारे पास, बोलती है उसको उबर स्टार्ट करना है एक नया, तो क्या? नहीं, जैसे एक तो अपॉर्चुनिटी हो गया नेटवर्किंग का, जो हम सबसे बड़ा हम लोग का थॉट भी है कि नेटवर्क की न्यू नेटवर्क, जैसे कोई बिहार में है, ठीक है, हम क्या सोचे हैं कि कोई आदमी बिहार का है और टेक्निकल फील्ड में कुछ करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, स्पेस नहीं है, उतना चीज सामान खरीदने का पैसा नहीं है, तो हम उसको ऑफर किए हैं कि तुम मेरे सेंटर पे आओ, हम तुमको सामान देंगे, जो भी रिसोर्स लगेगा, गाइडेंस लगेगा, हम प्रोवाइड करवाएंगे, स्पेस देंगे। बेसिकली जो स्पेस होता है मंथ का 3-4-5 हजार रुपया लेता है सब 1 सीट का, हम बोले हैं कि हम उसको फ्री में देंगे, 0 कॉस्ट के साथ, आओ बस कुछ अपना करो वहां से। ठीक है, तो उसी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस सपोर्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप को। ठीक है, तो बस लेने आना चाहिए, देने वाला बहुत है। Almost like incubation, like free incubation maybe initially and later maybe revenue share. हाँ, सही चलते। नहीं, इंक्यूबेशन नहीं बोल सकते। अभिषेक सर, हाँ, yes, please ask question. मैं डेयरी फार्मिंग का सोच रही हूँ, तो आई विल कम टू यू सून। और कोई एक और बताना चाहते हैं, कोई भी आदमी टेक्निकल में इंटरेस्टेड हो, कोई कुछ करना चाहता है टेक्निकल में, जैसे AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, रोबोटिक्स, IoT, तो उसके लिए मस्ट वेलकम। मेरे संस्था है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली अदर लोग से तो कुछ ले भी लेते हैं, लेकिन जो भी LWT हो गया या N हो गया, इसके मेंबर है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं, 0 चार्ज के साथ अवेलेबल है, कोई भी कुछ करना चाहता है। अभिषेक, आप फ्री ऑफ, सॉरी विशाल, एक सवाल है, please. आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेशन चला रहे हैं कि आपको चार्ज करते हैं? नहीं, फ्री बेसिकली हम लोग का मोटिव कुछ और, वहां से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मोटिव है। इंक्यूबेशन का कोई चार्ज नहीं करते हैं, अपना पॉकेट का पैसा लगाते हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? फायदा क्या है आपको? बस एज फॉर एग्जाम्पल आप जुड़े, ठीक है, या मेरे को क्या बेनिफिट है कि मेरे सेंटर पे 10 आदमी काम कर रहा है, उसको हम 4 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, इसमें ऐसे लोग जुड़े हैं जो मतलब IISc के हो गए, IIT मुंबई में 35, IIT में 35 रैंक लाया था, तो वो अपना उस स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देंगे, वो कंप्लीट करेगा, और अगर उसका प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उस प्रोजेक्ट का उस शेयर होल्डर रहेगा। शुरू में एक मेंबरशिप भी है ना, वो भी नहीं, कुछ मेंबरशिप नहीं रखे हैं, कोई का कंपल्सरी नहीं है, ऐसे ही 50-100 रुपया ले लेते हैं लोग, ताकि एक फॉर्मेलिटी टाइप का, ऐसा कुछ नहीं। 10 रुपया भी कोई देता है उसके लिए भी सही। EN के, हम अपना इनोवेशन सेंटर का बता रहे हैं, EN के लिए मेंबरशिप है 14 से 99 का 1 साल के लिए।
थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, अभिषेक ने काफी अच्छे से बता ही दिया। तो जो हमेशा हम बोलते हैं सौरभ और बाकी लोग कि फ्रीमियम मॉडल है कि जो हम लोग चाहते तो सब कुछ येन भी फ्री में ही है, तो ज्यादा हमारे येन का प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे है, तो उस पे भी लोग आप ज्वाइन करते हैं और किसी को कुछ सजेशन चाहिए, आइडिया चाहिए, वो लेते हैं। लेकिन उसके बाद प्रीमियम इसलिए पेड मेंबर दे क्योंकि उनको हम लोग और भी कुछ सर्विसेज देते हैं। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर जुड़ा येन का मेंबर है, अब वो चाहेगा कि हमको कुछ मेंटर्स से एक्सेस चाहिए। अब मेंटर्स हमारे मान लीजिए कि बहुत बिजी लोग हैं, पर उनके साथ आपको हम एक्सेस दिलाएंगे, तो वो एक प्रीमियम हो गया। अगर किसी को चाहिए कि हमको किसी इन्वेस्टर से बात करना है, किसी को चाहिए, तो अलग ये सारी जो सर्विस है, या जैसे कि अभिषेक जी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि इनका खुद का कंपनी है रोबोटिक्स के फील्ड में, बट इनकी कंपनी में इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट दे फ्री में है, तो येन के मेंबर्स को भी एक, क्योंकि येन के ही मेंबर्स के पास ये इनोवेशन का एक हब बनाया हुआ है, तो उनको वो एक्सेस मिल रहा है जस्ट बी दे आर पार्ट ऑफ येन। और येन के एक मेंबर जो है अभिषेक जी, तो अभिषेक जी के से उनको बहुत सारे, या येन के ऑल मेंबर, मान लीजिए मैं सिलिकॉन वैली में हूँ, तो बहुत सारे येन के मेंबर हमको रीच आउट करते हैं एडवाइस के लिए, मैं देता हूँ। और भी हमारे लोग हैं, संतोष जी यूरोप में है, कोई जापान में है, अलग अलग जगह पे पूरी दुनिया। तो ये जो मेंबर्स है, मेंटरशिप वगैरह ना ज्यादातर फ्री में मिलता है, लेकिन किसी को चाहिए कि डेडिकेटेड टाइम चाहिए कि मेरे कंपनी में, आप स्टार्टअप में आप मुझसे जुड़िए और हम चाहते हैं कि आप मेरे स्टार्टअप को हेल्प कीजिए फंड रेज करने में या ग्रो करने में। तो मेरी कंपनी है अपनी रेन वेंचर्स, तो मेरे रेन वेंचर्स के थ्रू वो कमर्शियल हमारा अरेंजमेंट है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या फ्री है क्या प्रीमियम है। तो कुछ चीजें फ्री है और कुछ चीजों का पैसा लगता है। येन का मेंबरशिप वह 1500 लेते हैं, वो 1499, ताकि येन का वेबसाइट हो या येन की जो टीम है प्रोफेशनली चला सके। सिमिलरली मेरी कंपनी है रेन वेंचर्स, तो वो कमर्शियल मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी को कैसे चलाना है वो कम्प्लीटली हम पे डिपेंड करता है। मैं उसका इन्वेस्टर हूँ, ओनर हूँ। पार्टनर्स को भी मैं फ्री में कुछ हेल्प देता हूँ, बट कुछ चीजों के लिए चार्ज करता हूँ। तो मॉडल ये है कि कुछ चीजें फ्री है और कुछ चीजें पेड है। तो ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है कि क्या फ्री है और क्या पेड है। और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि किसी को समझना है कि क्या करना। जैसे कि अभी सेजल का आंसर देता हूँ। सेजल डेयरी में कुछ करना चाहती है, तो अभिषेक जी तो रोबोटिक्स के फील्ड में, कि डेयरी के फील्ड में उसको चाहिए, तो हमारे नेटवर्क में मेरे अपने रिश्तेदार लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने डेयरी के फील्ड में काफी अच्छा काम किया हुआ है। एक तो हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिला था, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था डेयरी के फील्ड में ही। तो अब सेजल ने बोल दिया कि मैं डेयरी के फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग खटाक से क्लिक किया, अरे सेजल को तो मैं, उनका भी नाम अभिषेक ही है, तो और सेजल को मैं अभिषेक जी से मिला सकता हूँ, या सेजल को मैं अपने IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर अनिल गुप्ता से मिला सकता हूँ, जो कि एग्री बिजनेस के फील्ड में वर्ल्ड रिनाउंड आदमी है। तो बेसिकली नेटवर्क में अलग अलग सुविधाएं, अलग लोगों को अलग अलग चीजें मिलती है। कुछ चीजें फ्री है, पानी आपके सबके लिए फ्री है, मिनरल वाटर चाहिए तो थोड़ा पैसा लगेगा, सोडा वाटर चाहिए तो थोड़ा और पैसा लगेगा। तो अलग अलग चीजों के लिए, वैल्यू एड के लिए पैसा लगेगा। होपफुली मैंने आंसर कर दिया। सेजल आपका आंसर हुआ कि नहीं? नहीं तो अतुल सर, इसमें मैं थोड़ा सा, आपने जैसे बोल दिया कि ये फ्री है ये पेड है, बट आई थिंक ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया कि फ्री क्या है और पेड क्या है एज एन। अच्छा, तो बताता हूँ फिर से। फ्री में आपको सलाह है, कम्युनिटी है। तो जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक हम सब के लिए फ्री है। कोई भी आदमी फेसबुक में अकाउंट बनाया तो दुनिया के 3 बिलियन 2 बिलियन लोगों के साथ नेटवर्क एक्सेस है। तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा नेटवर्क है, क्लोज नेटवर्क है। फेसबुक के नेटवर्क में ये आपका नेटवर्क है, आपके फ्रेंड, आपके अलुमनाई, उनसे आप जुड़ सकते हैं। बट ये हमने एंटरप्रेन्योर्स का एक नेटवर्क से आपको एक्सेस दिया कि इस नेटवर्क में सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ही इंटरेस्टेड है, तो ये क्लोज नेटवर्क आप दे। प्लस बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाता है। अब हमारे एक वन ऑफ द मेंबर्स हैं, जैसे कि विजय प्रकाश सर, वन ऑफ द मेंटर्स है। अब विजय सर का, प्रकाश रिटायर्ड IAS है, बट वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है पटना में चलता है, उसको वो चलाते हैं। प्लस उनका और भी बहुत सारे एरिया। अब विजय प्रकाश सर से इतने सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर के साथ किसी को टाइम चाहिए, तो वो मेंटरशिप बहुत वैल्यूबल है। बट हम लोग येन के मेंबर्स के लिए वो फ्री में मिल जाता है, बट ऑब्वियसली उसे टाइम देना पड़ता है। जैसे उनसे अगला सेशन कराना चाहते थे इसी वीक हम लोग, गवर्नमेंट से कैसे हमको हेल्प मिल सकता है, बहुत सारी गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। हमारे कॉल में हमने बोला, तो प्रपोज किया कि चलिए विजय प्रकाश सर को उसके लिए बुलाते। विजय प्रकाश सर को मैंने रीच किया, उन्होंने कहा कि अतुल अभी नहीं, 2 वीक बाद। तो विजय प्रकाश जी को टॉपिक दिया, उन्होंने कहा कि 2 वीक बाद वो टाइम देंगे। तो वो टाइम अगेन येन के मेंबर्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल रहेगा फ्री में। बट किसी को पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो उसके लिए फिर वो
मान लीजिए कि मेरी कंपनी से, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, रेन वेंचर से हेल्प चाहिए, तो फिर वो हमसे अप्रोच करेगा और हमारे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा या एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होगा, तो मैं समय के लिए पैसा लूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लूंगा, हर चीज के लिए पैसा लूंगा, लेकिन वो मेरा बिजनेस है। अभिषेक जी भी अपने रोबोटिक्स कंपनी में क्या करना चाहते हैं, वो अभिषेक जी के साथ, वीएन के मेंबर्स के साथ आप पर्सनल लेवल पे डिस्कस कीजिए, वो आपका पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप है। लेकिन ये एज ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन प्रॉफिट है, उसके लिए आपको बस 1499 देना है और आपको साल भर में जो फीस हम लोग ऑफर करते हैं, हमारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है कि क्या क्या आपको एज ए मेंबर मिलेगा। तो दैट इज व्हाट ऑफरिंग ऑफ वीएन। एंड हमारे बिजनेस के बारे में तो अभिषेक जी ने बताया, मैंने नहीं बताया। आई होप इट वाज क्लियर नाउ। एनीवन हैज क्वेश्चन प्लीज? नॉट क्वेश्चन, मेरा बस एक सजेशन है सर, बिकॉज क्लियर देखो has itself raised funds from couple of incubators or accelerators. So मेरा बस यही सजेशन है कि इसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, आई डोंट नो कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग रन कर रहे हैं, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली एलियन टू इट, बट इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रन किया जा सकता है। देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज जो इंक्यूबेटर्स से निकले हैं, सो यू कैन रियली मेक इट बिग। आई डोंट नो हाउ सीरियस यू आर विद दिस, और किस स्केल में आप रन कर रहे हैं, कितने स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, कितने पेड स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, उसमें से कितने लोग को एग्जिट, मतलब आप लोग को एग्जिट मिला, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसमें, डिड यू मेक मनी, डिड यू नॉट मेक मनी, स्टार्टअप्स क्या सक्सेस स्टोरीज निकले, नहीं निकले। सो देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेटर who have made a name for themselves in the market. I'm sure you are aware of them. And क्योंकि मैं खुद SOSV से हम लोग जुड़े हुए थे। SOSV एक चाइनीज बेस्ड एक्सेलरेटर है, यूएस में भी है, 3-4 कंट्रीज में है, मतलब पूरा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया पूरा केटर करता है, और उससे हमें काफी फायदा हुआ था। दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट और एक है वेंचर कैटलिस्ट जो इंडिया का एक्सेलरेटर है, वो भी वीकैट्स बोलते हैं उसको, वीकैट्स और SOSV वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सेलरेटर है इस टाइम पे। एंड दे आल्सो हैव अ फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम कुछ नहीं है, प्रीमियम ही है। दे सेलेक्ट स्टार्टअप, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा, दे सेलेक्ट स्टार्टअप और डे वन से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड द स्टार्टअप्स गेट व्हाट दे एक्सपेक्ट। So you can run it in a very organized with certain tangible outputs. So हम लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि हम लोग एवरी डे वी टॉक, अभिषेक और हम और हमारी जो टीम है, इनके जो को फाउंडर्स हैं, चाहे वो अभिषेक जी हो, मैं हूँ, चंदन जी हो, और भी जो हमारे टीम के लोग हैं, तो वी हैव अ मीटिंग एवरी डे और फॉर नॉन प्रॉफिट के लिए। तो अगर नॉन प्रॉफिट के लिए इतना समय दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सीरियस हैं और अपने बिजनेस के टाइम खींच के दे रहे हैं। सेम काम जो अभिषेक अपने विमल बॉट्स के लिए या अपनी रोबोटिक्स कंपनी के लिए दे सकते थे, उसके जगह पे येन को दे रहे हैं। मैं भी जो काम अपने रेन वेंचर्स को दे सकता हूँ, उसके जगह में येन को दे रहा हूँ। तो हम लोग समय भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, तो और अपने नेटवर्क, सबसे हमारा जो सबसे बड़ा वैल्यूबल एसेट जो मेरा है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों का होता है, वो नेटवर्क। तो मैं अपने बहुत हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, जैसे हमारे IIM अहमदाबाद के एक सीनियर है महमूद खान, यूनिलीवर के इनोवेशन प्रोसेस के हेड थे। अब महमूद खान भी हमारे इनके एडवाइजर्स में से हैं। विजय प्रकाश सर हैं, और एक टाई के ही जैसे कि कलकत्ता के जो हैं बहुत बड़े VC हैं। तो बहुत सारे VCs को भी हम यन के ग्रुप से जोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फ्री वाला पार्ट है हमने स्टार्टिंग में फ्री से किया, क्योंकि हम जिस टारगेट को एड्रेस कर रहे हैं, हम लोग उस बहुत ही प्रीमियम जो आपने एग्जांपल दिए, मैं भी बहुत सारे VCs इनक्यूबेटर्स को जानता हूँ, सिलिकॉन वैली में भी जानता हूँ, न्यूयॉर्क में भी जानता हूँ और भारत में भी जानता हूँ। तो उनसे हम थोड़ा डिफरेंट ये हैं कि हम लोग थोड़े से ग्रास रूट लेवल पे अभी फोकस ज्यादा कर रहे हैं। छपरा टू कैलिफोर्निया इज अ गुड वे टू डिस्क्राइब इट। अभिषेक जी इन छपरा एंड आई एम इन कैलिफोर्निया। तो हमारा जो एक्सेस है कि हम लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला जो पार्ट है उसको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि कोई आदमी 500 रुपया भी अफोर्ड कर सकता है, उसको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं करता, उसके लिए हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि उनको कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। बहुत लोगों के लिए हमने फ्री में भी दिया हुआ है हेल्प, और हम लोग देते रहेंगे। ऑनगोइंग में हम लोग बहुत सारे लोगों को फ्री में भी देते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों से हम लोग बड़ा पैसा भी लेंगे, जैसे कि अभी मान लीजिए कि हमने मेंबरशिप 1500 रुपया 1499 दिया, बट कुछ लोगों से हम लोग हो सकता है कि 15,000 या 1.5 लाख भी चार्ज करेंगे। तो वो अलग जो है प्रीमियम जो चार्टर मेंबरशिप का वो अलग रेट है। तो वो हमारे टीम जो है डिस्कस करते रहती है, इवॉल्व होते रहता है। और हमने एक चीज स्टार्टअप का एक चीज अडॉप्ट किया है कि आप
सब कुछ नहीं जानते। आप कस्टमर को बेचोगे बट बाद में कस्टमर लगे नहीं मुझे लाल रंग नहीं, मुझे तो पीला वाला चाहिए, मुझे नहीं छोटा नहीं बड़ा चाहिए। तो हम अपने कस्टमर्स को मिलकर, और इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम लोग कस्टमर जो हमारे जो एन के मेंबर्स हैं उनसे मिल के साथ में बना। हमारी एक मीटिंग लास्ट वीक ही हुई थी कि जो हमारे एन के जिन लोगों ने पेड मेंबर्स हैं उनके साथ एक अलग मीटिंग रखा कि अब आगे कैसे कराना है। तो हम लोग थोड़ा सा कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट के शेप में इन्वॉल्व करते हैं। ये नहीं कि हमने बना दिया, चश्मा बना दिया, फिर आप दिखा रहे कि आपको कैसा लगा। नहीं, हम कस्टमर को बहुत अर्ली स्टेज में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। येन भी उसी स्टेज में, स्टार्टअप स्टेज में ही अभी 1 महीने हुए, लेकिन हम लोग अपने कस्टमर्स को भी बहुत क्लोजली इन्वॉल्व करते हैं। होपफुली आंसर कर दिया मैंने। Just ensure you have quality startups. This is my only last suggestion. क्योंकि अगर मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ और मैं जुड़ना चाहता हूँ, doesn't mean I should be there in your list. नहीं, I will welcome everyone. चाय वाला हो, झाड़ू वाला हो, everyone will welcome everyone. No bias. हाँ, प्रीमियम मेंबरशिप जो है एक्स्ट्रा, उसके लिए आदमी 1,500 रुपया देगा तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग हो गया। बट ऊपर जो सुपर प्रीमियम जो लगा चार्ज, कोई आदमी बहुत बड़ा पैसा दे रहा है तो एक्सपेक्ट भी उतना कुछ करेगा। तो हम मतलब कि बॉटम ऑफ द पिरामिड से टॉप ऑफ द टावर सब मतलब कि एलॉन मस्क को भी हम लोग वेलकम करेंगे और सर्जेई ब्रिन को भी वेलकम करेंगे, सबको वेलकम करेंगे। नारायण मोदी जी हमसे पर्सनली क्लोज है। अब कुछ मीटिंग के लिए हम नारायण मोदी जी को हर मीटिंग में नहीं बुला सकते क्योंकि बहुत बिजी है, तो उनके साथ एक मीटिंग कराना है तो उसके लिए कोई बहुत सीरियस एंटरप्रेन्योर होगा, ऑलरेडी फंडेड होगा, ऑलरेडी काफी ड्यू डिलिजेंस हमारी टीम कर लेगी, तो वो ज्यादा हम लोग प्राइवेट मोड में ज्यादा कर देते हैं। बट हाँ, एज ए मेंटर उनको यूज करते हैं हम लोग और टाइम भी देते हैं। मैं पर्सनली तो यूज करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जब अभिषेक ने नाम लिया कि टाई और बाकी उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, चूंकि मैं टाई सिलिकॉन वैली का खुद एक और साइड ट्रैक बताता हूँ। टाई सिलिकॉन वैली में खुद मैं वॉलंटियर के रूप में हूँ। अब टाई सिलिकॉन वैली के एआई मशीन लर्निंग ट्रैक का ट्रैक मैनेजर उन्होंने मुझे पूछा, मैं बन गया। तो बड़े बड़े जो AIML के बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स कंपनी वेल एस्टैब्लिश $1 बिलियन ज्यादा कंपनी वाले, उन लोगों को बुलाना, टाई के लिए बुलाना मेरा काम है। बट कल को उन्हीं में से कुछ को मैं जरूरत होगी तो मैं उनको येन के बारे में सबको बताता हूँ। इफ एनी ऑफ देम इज इंटरेस्टेड तो मैं उनको येन से भी जोड़ूंगा। तो अलग अलग प्राइसिंग है, अलग अलग ऑफरिंग है फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम लोग केवल हैव्स को फोकस करें, हम लोग हैव नॉट्स और हैव्स दोनों को फोकस करेंगे। नहीं तो सर इसमें दो चीजें आई थिंक जो सौरभ ने बोला, मैं थोड़ा सा उसको बाइफरकेट करता हूँ। क्वालिटी मतलब क्वालिटी सिर्फ मेंबरशिप फी से नहीं आता है। लाइक इवन अगर हम कैट एग्जाम का क्लियरेंस का बात करें, सो एवरीवन प्रीटी मच पेज द सेम फी, राइट? maybe there is some scholarship, but pretty much everybody pays similar fee, similar average fee, but still they have to clear some cutoff initially, right? तो आपने येन के लिए कोई इनिशियल कुछ स्क्रीनिंग नहीं रखा है ना? मैं बताता हूँ, हमारे IIM अहमदाबाद के गेट पे एक बैठते हैं, बहुत फेमस है, राम भाई चाय वाला। तो चाहे आप मैकिंजी में जॉब लेने के लिए आए पार्टनर हो, या BCG के हो, या गोल्डमैन सैक्स के हो, राम भाई चाय वाला को सबके बारे में पता होता है कि सब लोग, वो लोग भी बैठ के चाय पी रहे हैं साथ में। बड़े बड़े जो बड़े कंपनीज के पार्टनर्स और बड़े बड़े MDs एंड EDs गोल्डमैन सैक्स से, वो लोग राम भाई के पास चाय पी, क्योंकि IIM अहमदाबाद के रिक्रूट के लिए आ रहे, तो उनको भी नॉस्टैल्जिया है, तो राम भाई से लाइक। तो राम भाई नोज मोर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन IIM। बच्चों बहुत सारे लोग जाके पूछते हैं कि राम भाई क्या चल रहा है अभी, इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं, कौन कंपनी क्या पूछ रही है। तो राम भाई हैज दैट इंटेलिजेंस। तो हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इन ग्रासरूट लेवल ऑफ इनोवेटर्स के को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जहां तक आपने बताया कि स्क्रीनिंग की बात करें, तो स्क्रीनिंग का तब आता है ना, किसी स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए, तो वो स्क्रीनिंग तो फिर अगर वो प्राइवेट में आता है। अगर कोई 1,500 रुपया दे रहा है और उसको जो चाहिए कि वीकली हम उसको एक कॉल दे रहे हैं, जूम कॉल के थ्रू वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोग कभी फ्री में भी देते हैं कॉल के लिए, कभी कभी क्या आप आ सकते हैं फ्रेंड एंड फैमिली को, तो वो अलग चीज है। बट उसमें से किसी एंटरप्रेन्योर को, येन के मेंबर को वो एक्सेस चाहिए अपने, कि नहीं मेरे साथ स्टार्टअप अच्छी चल गई है, क्लियर देखो अच्छी चल गई है, अभी हमारा $1 मिलियन का बिजनेस है, बट अब इसको हम स्केल अप करना चाहते हैं, 100 मिलियन ले जाना चाहते हैं। तो उस लेवल के एक्सेस के लिए तो हमारे जो येन के जो मेंबर्स हैं, वो पर्सनल कैपेसिटी में अपने बिजनेस के थ्रू जो कर सकता है। तो आज अतुल कुमार अगर किसी $1 बिलियन VC से आपको मिला सकते हैं, तो वो अतुल कुमार और उनके बीच का ट्रांजैक्शन है। अभिषेक कुमार किसी से करा सकते हैं, तो अभिषेक कुमार का। कल को हमारे एक मेंटर है संतोष पांडे, यूरोप में किसी को जानना है कि क्लियर देखो यूरोपियन मार्केट कैप्चर करना चाहता है, तो हम संतोष पांडे से इंट्रोड्यूस करेंगे। बट ऑब्वियसली उनके टाइम वैल्यूएबल है,
तो उनके लिए भी आपको कमर्शियल अरेंजमेंट, तो वो केस टू केस बेस में हर केस में अलग ट्रांजैक्शन होता है। बेसिक सर्विसेज हमारा प्लेन वनीला गंगा के पानी की तरह सबको फ्री में अवेलेबल है, बट उसके ऊपर हमारा अलग अलग लेवल पे अलग अलग वैल्यू भी है और अलग अलग प्राइसिंग भी है। Anyone wants to ask any question on this? All good? Okay. So, yes, Nandan, please. No, sir, nothing to ask. I'm not feeling well today. I just want to listen. So the reason I'm Sure. Okay. So, yeah. So let's come to our topic today about risk management for entrepreneurs. So before going to entrepreneurs, let's just think about this risk as a as a personal front. So probably everyone takes risk at some point of their life or maybe continuously. कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिस्की तो यही होगा सबने. So in general, let's just have some opening remark कि let's say क्या आपने जब पहला बार रिस्क लिया होगा, so what was the thought process in your mind and how you overcame that thought process, let's say. If you wish to share a story, feel free, but don't tell a big story. छोटा story, ठीक है, 1 minute का story में भी. So let's hear from everyone. So Ravi, do you have any, I mean, any like बचपन से like पहला बार या दूसरा बार, anything that you remember where you took a lot of risk? Okay. Yes, you are audible. I'm audible because I'm getting disconnected. Yes, you are audible. Yeah. So risk is one of the prominent factor in my life which make me to go ahead in life. So I do take it on every day, every moment, and I have since schooling, this is one of the prominent things which is imbibed in my blood to take up the risk and do the thing. See, the first day in the school, maybe Atul sir will relate it, because at that time school was not only just science school was not only school where you have to just go and do the physical as well as the academic education. At the same time, there were a lot of ragging used to happen in science school, and I still remember my first day in school. I went to school at 4 o'clock in the evening. I joined the schools. I submitted all the documents, and next day morning, 5 a.m. we had a PT, and then 3 kilometers a drive was there for running. Okay, and on the first day itself in 6th class, we were manhandled by our seniors by hockey. So that is the first day when brought me or like break the ice of taking risk. Like life is not easy. You have to take your stance so that you can escape either the rough phases or else you take it on and then move ahead. And thereafter the risk things started on every time, and now after 6th or 7th 8th and then graduations, post graduations, in job life, so risk involves, and I started taking on thereafter. So that is why most of the times I always tell these things to the people and even to myself, like when you involve risk, try and calculate it properly. One, after calculations, put another at least 30% on it so that you can expand your bandwidth to take it on, and then go ahead. Things like we say, things will either fall in your directions or it will not fall in your direction. So that is what your point comes in. If it is not falling in your directions or it is not falling in your way, definitely you require your mind to do it. Sure. Okay, let's hear from Mr. Hari. What's your take on risk? आपने पहला बार कैसे लिया, क्या लिया? Anything you want to share? Hello. Yes. Yeah. So risk as such, पहला बार कब लिया? So ये तो थोड़ा difficult रहेगा अभी बताना. पहला बार नहीं, whatever you remember. Anything you want to share? Yeah.
यस यस सो एक्चुअली मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर स्टार्ट किया था. सो फर्स्ट तो मैं आपको ऑलरेडी एक बार बिटकॉइन का भी मैंने शेयर किया था. तो जब फर्स्ट टाइम मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, सो मुझे बहुत बड़ा रिस्क लगा था ये कि कुछ पता नहीं है बिटकॉइन क्या चीज है. बट वही कुछ नेटवर्क में कुछ लोगों ने बताया कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, और मैंने वहां पे जाके इन्वेस्ट कर लिया था. सो दैट वाज द रिस्क दैट आई टुक. बट मुझे इसका कभी कुछ रिग्रेट नहीं हुआ कि आई एम नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम माय रिस्क. क्योंकि आदमी रिस्क क्यों लेता है? मेरे हिसाब से रिस्क का डेफिनेशन है कि यू शुड लाइक गेन समथिंग फ्रॉम दैट रिस्क. थोड़ा ग्रो करने के लिए आदमी रिस्क उठाता है कि what is my current situation, based on that I am investing somewhere and I want to grow from it. So मेरा experience as such बिटकॉइन या शेयर मार्केट में as such इतना गुड नहीं रहा था. so मैंने लॉस ही किया है दोनों जगह. और बट स्टिल आई नेवर फेल्ट कि इट्स अ लॉस, इट्स अ लर्निंग फॉर मी. तो मैं उसको एक बहुत अच्छा लर्निंग समझ के आगे बढ़ता हूँ. और it really makes me more smarter and in how to manage your money and how to manage your investments. तो ये चीज हम लोग सीखते हैं उसमें से. So I don't think so Bitcoin many of the people were investing, but still somehow I managed to invest in that. And coming to share market, it's a very vast thing. उसमें बहुत सारा knowledge gain करने का scope है. So as of now I am still lost my money in share market as well, but yeah, I feel like I will overcome that someday. So you have already sold those shares? Yeah, it's just the value it's lower now. No, I actually traded in intraday for future and options. So उसमें either you sell it by 1 week before the expiry or you have to sell it the same day. तो ऐसा मतलब it's not a बिक गया share ना but लास्ट में. हाँ मतलब बचा नहीं है ना. नहीं दो तरह से हो सकता है कि you are just looking at a number and feeling bad about it every day or every month maybe. कम हो गया बढ़ रहा नहीं है. वैसा भी हुआ है. वैसा भी हुआ है जब स्टार्ट किया था. हाँ जब स्टार्ट किया था तो मैं सेसा गोवा नाम की एक कंपनी है जो अभी आज के तारीख में वेदांता नाम से लिस्टेड है. सो सेसा गोवा के ऊपर उस वक्त केस चल रहा था और मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सेसा गोवा में था. एंड आई इन्वेस्टेड अराउंड 20,000 इन 2012. और वो शेयर का वैल्यू 20 से घट के 13,000 आ गया. और मैं रोज सोचता था कि इसमें अभी कुछ तो आएगा, इम्प्रूव होना चाहिए. बट समटाइम्स हमारा स्टडी प्रॉपर नहीं होता है, और एल्स हम लोग इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी ऐसा होता है कि वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट आवर मनी वेयर वी आर इन्वेस्टिंग. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी नॉलेजेबल. यानी अपने को उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकाल लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले. So even if you are investing 1 rupee, you should know everything about that company. कि कौन सी कंपनी है, इसका क्या है बैलेंस शीट, ये कैसे प्रॉफिट कमा रही है, whether it is good or not, A grade, B grade, किस टाइम में, वो सब थोड़ा रहता है. तो at that time Sesagua was in problem. It was going under court case that the mining is illegal, this that. So Mr. Agrawal उसके CEO है और अभी रिसेंट में वेदांता का डीलिस्टिंग भी हो गया है. So that company got delisted itself from stock market. तो ऐसे मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे. So this was related to financials. और उसके अलावा भी जैसे अभी while studying also, like risk comes almost each and every day and we have to live that. डिसीजन मेकिंग हमको डिसाइड करना होता है कि क्या करना चाहिए अभी. So risk is almost a part and parcel of our day-to-day life, like that is there. अभिषेक कहता है, do you want to share पहला बार रिस्क या लास्ट रिस्क? यस हम बताना चाहते हैं कि मेरे लिए तो खैर मेरा माइंड के डिक्शनरी में अब रिस्क नाम का कोई वर्ड ही नहीं मानते हैं. हम इसको एज ए चैलेंजिंग देखते हैं
किसी भी चीज को हम समझते हैं कि मेरे पास चैलेंज आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जब मेरा जेई निकल नहीं पाया था, मतलब उस समय घर से इतना ज्यादा प्रेशर था कि जो बोलते नहीं सुसाइड टाइप वाला, उस टाइप की सिचुएशन था। और ये सारे लोग बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं वो टारगेट एक साल ड्रॉप करके टारगेट कर लो, लेकिन मेरे को था कि नहीं भाई 365 दिन का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, हमको टारगेट नहीं करना है। जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सबका ड्रीम रहता है कि मतलब अच्छा खासा जॉब हो। घर वालों को पता चला कि अरे 6 महीना बाद ये सब क्या, ये स्टार्टअप का 1 साल बाद भेजे थे इंजीनियर बनने के लिए, बल्ब का ये सब काम स्टार्ट, इसको भेजे इंजीनियर बनने के लिए और बेचने लगा बल्ब। ठीक है, बढ़िया बन तो गया। चैलेंजिंग, यस तो चैलेंजिंग बहुत आते रहता है। और जहाँ तक बात बतला रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक है कि इसमें रिस्क हम नहीं मानते हैं कि रिस्क है, और या जो भी है, क्योंकि रिस्क रहता तो आज रक्षाबंधन के दिन भी हम 8-10 घंटा ऑफिस में काम किए। आखिर क्यों करते हैं? एक चीज है कि सक्सेस हो फेलियर हो, फेलियर होगा तो इंसान सीखेगा, लेकिन मजा बहुत आता है। जो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या देखेंगे, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, सक्सेस मिला फेलियर मिला नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसे लगता है कि हाँ कुछ किए हैं। बेस्ट एग्जांपल देते हैं 30 सेकंड का कि कुमार विश्वास का, जब वो पोइट्री में आया था, क्योंकि उसको आइडियल बोलिए, मतलब हम उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो उसके घर में हर लोग पढ़ा लिखा था और वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तो उसका पापा उसे पूछे कि अरे तुम बोल रहे हो कि एक कविता करेंगे, ठीक है, और एक खाओगे कहाँ से, क्योंकि पोर्ट तो उतना पैसे नहीं कमा पाता है, क्योंकि उस समय ट्रेंड नहीं था कि मतलब कभी उतना पैसा कमा पाएगा। तो एक बहुत अच्छा आंसर दिया था, हमको पता नहीं है कि कहाँ से कमाएंगे कहाँ से खाएंगे, घर घर घूम के भी कविता गाएंगे तो जो आदमी 2-4 रोटी दे देगा उससे खा लेंगे, पर इतना अफसोस नहीं रहेगा कि हम जो चाहे वो ट्राई नहीं किए। तो यही चीजें स्टार्टअप का, हम तो बोलते हैं कि स्टार्टअप फील्ड मैक्सिमम आदमी को एक बार ट्राई करना चाहिए, चैलेंज लेना चाहिए लाइफ में। 60-70 साल का जिंदगी है, चैलेंज नहीं लिए नहीं तो वो फिर वही रहेगा, पैदा हुए खाए पिए अच्छा और फिर मर गए। Sure. Sejal, you have any comment? Taking risk? Anything you want to share? Yes, sir. Am I audible properly? Yes, yes. Okay. तो सर जब मैं इवेंट मैनेजमेंट में थी तो आई वाज हैंडलिंग वन ऑफ द वेडिंग इवेंट। वो मतलब मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उस दिन माय बॉस वाज नॉट प्रेजेंट देयर एंड आई वाज इन फील्ड ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होनी थी आई हैड टू हैंडल दैट। और तो सडनली माय बारटेंडर जो उस टाइम हमारे लिए काम कर रही थी, शी केम टू मी एंड शी सेड कि मैम देयर इज वन अंकल टाइप जिन्होंने मुझसे पूछा दैट यू आर वेयरिंग सच अ वंडरफुल ड्रेस आउटसाइड, व्हाट यू आर वेयरिंग इनसाइड। And he was not staring at me with a good eyes or somewhat like that. And उस time she was crying, she was literally crying. So I said please sit in my room. And suddenly जैसे ये हुआ उसके बाद the host called me कि why the bartender is not at her place and I want her right back and all that. So I was very confused what to do. I called him to my place that sir please come, there's some issue. और उसके बाद he started shouting कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुमने ऐसे कैसे बारटेंडर को भगा दिया and all that. So I said sir आप 2 मिनट बैठिए, I offered him some water and all that. फिर मैंने उनसे कहा सर देखिए बात ऐसी है कि बारटेंडर is asking to file a police complaint. तो उन्होंने बोला ऐसा क्या हो गया और ये सब। मैंने बोला ये सिचुएशन है
ऑल्दो मैं झूठ बोल रही थी, बारटेंडर ने कोई पुलिस कंप्लेन की बात नहीं की थी. शी सेड कि मेरी जॉब में ऐसा होता रहता है, बट स्टिल शी वाज क्राइंग. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर पुलिस कंप्लेन फाइल होने की बात हो रही है. तो ही वाज लाइक वेरी मच एंग्री. तो ही सेड हो जाने दो, और क्या कर लेगी पुलिस, आई डू हैव कॉन्टेक्ट्स, मेरी शादी में कितने सारे पॉलिटिशियंस आए हुए. मैंने कहा सर आप सही कह रहे हो, कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस, बट स्टिल पुलिस का सायरन बजेगा, अच्छा नहीं लगेगा. एंड समहाउ मैं उन्हें कन्विंस करने में आई सक्सीडेड. और उस टाइम जैसे जैसे सिचुएशन हैंडल हो गई, बट वो एक ऐसा पॉइंट था कि आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू. और जो भी हुआ एकदम सडन हुआ, सडनली मैंने कोई डिसीजन लिया, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें कन्विंस करना वाज द टफेस्ट टास्क. तो ये मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि उस टाइम मेरी बॉस भी मेरा पे कट कर सकती थी. एंड देयर वर लाइक, अगर वो रिस्क नहीं लेती तो देयर वर 100 ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. जबकि ये मैंने झूठ बोला था, पुलिस कंप्लेंट एंड ऑल, बट आई हैड टू डू दिस. आपका क्या सजेशन है? झूठ बोलना ही रिस्क था. हाँ, सबसे बड़ा रिस्क यही था. आपका क्या सजेशन क्रॉस है? चेक कर लेते तो पता चल जाता. रिस्क लिया ना. नहीं सर, तो बैकअप तो मेरा तैयार था ना. नहीं ठीक है. मैंने उस लड़की से फेक मैसेज सेंड करवा लिया था खुद को. मैंने उसका जो इवेंट कोऑर्डिनेटर था, उस आर्टिस्ट का, मैंने उससे एक फेक मैसेज सेंड करवा लिया था पहले ही व्हाट्सएप पे, that my artist is gonna file a police complaint in case of molestation. और ये सब what do you रिकॉर्डिंग think? हो रहा I है. did it right or wrong? करेक्ट. और ये सब तुमने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, एक और रिस्क ले लिए. And all I would like to say that some risk worth taking. जो सेजल ने जो रिस्क लिया ना, is worth taking. सौरभ सर आपका क्या व्यू है, और विशाल सर आपका क्या व्यू है? आई मीन लाइक आई डिड इट राइट और रॉन्ग, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्योंकि मेरी बॉस प्रेजेंट नहीं थी. सो आई वोंट हैव लाइक, आप मेरी जगह. सौरभ बोलेगा. सौरभ बोलो प्लीज. मैंने ज्यादा सॉरी सेजल, मैंने बहुत अच्छे से सुना नहीं, पर रिस्क में जो डिसीजंस लेते हैं, कोई राइट या रॉन्ग डिसीजन होता नहीं है एक्चुअली. So you take a decision. For example, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, तब आप पूछ रहे हो कि सौरभ सर मैंने सही डिसीजन लिया खाई में कूद कर. मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, there is no right and wrong answer. आप कूद जाओ, उसके बाद make it right. एक्चुअली एक जनरल आंसर चॉइस है. अब सौरभ हो सकता है खाई में कूदे, मैं इधर कूदूं, तुम वहीं खड़े रहो. तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से डिसाइड करेंगे ये सब सिचुएशन पे. अच्छा मैं बोलूँ अब? हाँ यस सौरभ. ओके तो मैं दो इंसिडेंट्स बताऊंगा. मेरा लाइफ का फर्स्ट रिस्क और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क. पहला रिस्क था जब मैं मम्मी के पेट से बाहर निकला था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं. और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क था जब मैंने शादी किया, कि किसी एक इंसान के साथ आप कैसे पूरी जिंदगी भर रह सकते हो. ये तो स्टार्टअप से भी बड़ा रिस्क है. ठीक है, अब ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताता हूँ, रिस्क ना इज अ नेगेटिव वर्ड. सो रिस्क की जगह हो सकता है ये होना चाहिए लेट्स स्टार्ट, या मेरे कहने का मतलब है कि रिस्क जो यूज होता है ना, वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है. अगर ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो लोग रिस्क ज्यादा लेते. रिस्क बोल कर ये चीजें डिस्कस कर ना, लोग के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि एक नेगेटिव चीज है. सो अगर ये रिस्क वर्ड नहीं होता तो वी वुड हैव हैड मोर एंटरप्रेन्योर्स, वी वुड हैव हैड मोर innovations, you would have had more happiness, liberty, freedom. मुझे ऐसा लगता है. So मेरे लिए personally risk word exist ही नहीं करता है. मैं डेली कोई ना कोई रिस्क लेता हूँ, और रिस्क एक्चुअली है नहीं. जो लोग रिस्क बोलते हैं ना कि हम नहीं लेते हैं, वो भी रिस्क ले रहे हैं. उन्हें लगता है कि वो रिस्क नहीं ले रहे हैं. तो रिस्क हर बंदा ले रहा है, कोई नोइंगली ले रहा है, कोई अननोइंगली ले रहा है. और मेरे लिए तो खैर रिस्क वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज इट्स हु आई एम. सो इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट व्हिच आई कीप डूइंग एवरी डे. सो डेली रिस्क है. अब मैं विशाल के सामने इतना कुछ बोल रहा हूँ, विशाल यूट्यूब में डाल देंगे, इससे बड़ा रिस्क क्या है? सही बात है. नहीं, और इसमें ये भी है कि रिस्क कोई कम लेता है, कोई थोड़ा ज्यादा लेता है, लेता सभी लोग.
यस रवि जी please. और जो रिस्क नहीं लेते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सेफ हो रहे हैं नहीं लेकर, उन्हें ये पता नहीं कि वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हैं। वो रिस्क ना लेके और बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। ओके रवि सर मैं एक चीज बोलूं, एक नहीं हाथ कैसे उठाया? हाँ रवि Okay, no, I just want to comment on Yes. Sejal point हाँ, कि रिस्क से ज्यादा आई फील इन हर स्टोरी कि उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा दिखाया। Yeah. मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट सकम टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अभी उनको पता नहीं चलता क्या करें या फिर कैसे हैंडल करूं। बट द गुड पॉइंट विथ यू सेजल, यू सोन लाइक प्रोसेस ऑफ माइंड वेरी इफेक्टिवली। आप उसमें पैनिक नहीं किए या फिर मतलब ऐसा होप नहीं कि अभी मैनेजर नहीं है, व्हाट आई शुड डू एंड ऑल दोस थिंग्स, rather than you take a you utilize your presence of mind and design some things which go well in directions of convincing the person, so which is good part, commendable. yes Atul sir please. तो वही मैं अग्री विथ रवि सर। एंड अदर थिंग इज कि रिस्क नहीं लेना इज द बिगेस्ट रिस्क। कि आप रिस्क लेते हैं तो यू नो कि ये जो रिस्क ले रहा हूँ इसका ये रिटर्न है, ये इसका डाउनसाइड है, ये अपसाइड है, कुआं खाई आपने कैलकुलेट किया, आपके हाथ में कंट्रोल, यू आर इन कंट्रोल। बट आपने रिस्क नहीं लिया अपेरेंटली, बट फैक्ट है कि आपने कंट्रोल दूसरों के हाथ में दिया। आपने वेदर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपके दोस्त आपके रिश्तेदार कोई कंट्रोल नहीं है, तो दुनिया पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपने सारा कंट्रोल उन पे दे दिया। दैट्स द मोस्ट रिस्किएस्ट थिंग टू डू। यू हैव नो कंट्रोल, बट सारा रिस्क दुनिया डिसाइड करे कि क्या आपके लाइफ में होगा। सेजल के केस में क्या किया कि सेजल ने एक रिस्क लिया कि उसको एक डेंजर सिचुएशन थी, उसको हैंडल करना था, उसको लेकर सेजल ने एक हाई रिस्क बेट लिया कि नहीं मैं सिचुएशन के लिए किसी तरह से बचाऊंगी। एक मान लीजिए कोई गलत आदमी पहुंच गया है और वीआईपी है, मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अभी जैसे रिसेंटली जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़े बड़े लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग उसी पार्टी में इन्वॉल्व थे, शायद इस तरह के बड़े बड़े लोग थे। बट उसी मीटिंग में किसी ने अगर रिस्क लिया तो उसको दुनिया हीरो के रूप में याद करेगी, और लॉन्ग टर्म में लोग कहेंगे कि शी और ही डिड द राइट थिंग। जिनने नहीं लिया वो फॉरएवर एंड एवर वो गलत, उनके लाइफ लॉन्ग इस बात को रिग्रेट भी करेंगे। कानूनी प्रोसेस में तो टाइम लगता है, लेकिन लगेगा ही। ज्यादातर लोग पकड़े जाते हैं सूनर और लेटर। बहुत बड़े बड़े लोग पकड़े गए हैं। जैसे यूएस का एग्जांपल देता हूँ, एक हार्वे स्टाइन करके बहुत बड़ा था, प्रेसिडेंट का, जो करंट प्रेसिडेंट का भी दोस्त था, साथ में इनके विक्टोरिया सीक्रेट वगैरह वो के जो फाउंडर, उसके साथ दोस्ती। तो इन सारे लोगों की एक अलग गैंगबाजी थी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, आप राष्ट्रपति हो, बहुत बड़े बिलियनर हो, लेकिन द एंड ऑफ इट की सूनर और लेटर कानून के शिकंजे हो सकता है आपको पकड़ ले। और बहुत सारे बीच में लोगों ने, हार्वी स्टाइन को तो इसने मरवा भी दिया जो पार्टनर था। तो बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया है और उनको लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने रिस्क नहीं लिया है, जाने में या अनजाने में, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ा है। तो मैं ये नहीं, मैं अग्री करता हूँ इनके सौरभ से कि रिस्क तो सभी लेते हैं, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। यस सर मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क बताती हूँ मैंने कब लिया था। सबसे बड़ा नहीं बोला है, चीटिंग है ये। नहीं सर, वो तो ऐसा ही है, मतलब वो तो ऐसा ही था, इससे बड़ा स्टोरी है। किसी और की लाइफ का डिसीजन था। और मेरा रिस्क था जब मैं 7 years old थी, एंड मतलब मेरी सर्जरी होनी थी, नॉट सर्जरी बट ऑपरेशन होना था काफी बड़ा। और उसमें ये था कि मैं बची तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो सीधे ऊपर। एंड माय पापा वाज नॉट रेडी, ही वाज लाइक आई कांट रिस्क योर लाइफ। बट उस टाइम मेरा ये था कि नहीं, मुझे करवाना है, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी ऐसे एक डिसेबिलिटी के साथ नहीं जी सकती। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था, क्योंकि उसमें या तो मेरी जान जाती या मैं एकदम ठीक हो जाती, क्योंकि वो डॉक्टर्स के लिए भी एक्सपेरिमेंट था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क था। 7 years बोला तुमने क्या? हाँ 7 years में डिसीजन क्या लिया तुमने? सर एक्चुअली ना मेरी नहीं एक्चुअली ना मेरी फूड पाइप ब्लॉक थी बचपन से, फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। तो उसमें जो ब्लॉकेज था, तो मैं कुछ भी खाती, इवन इफ आई ड्रिंक वाटर, तो मैं उसे वॉमिट कर देती थी एज इट इज।
तो वो चीज थी कि ठीक नहीं हो रही थी, बहुत सारे डायलिटेशंस हुए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट उसके बाद फाइनली एक दिन आया कि ऑपरेट होना है, डॉक्टर ने बोला, बट डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि योर लाइफ इज एट रिस्क एंड इट इज अ एक्सपेरिमेंट फॉर अस। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा था, क्योंकि उसमें डिसीजन मेरा ही था, सब अपोज में थे मेरे, बट आई सेड कि आई कांट लिव माय लाइफ लाइक दिस, ईदर आई डाई और आई विल लिव, but not like this. So that was biggest risk in my life, because my life was at risk. New life after that. Yes, Ravi. Ravi ji पहले आपसे yes yes Ravi. ओके, सो मैं दो एग्जांपल्स देना चाहता हूँ रिस्क के ऊपर में, रिस्क हाउ वी टेक ऑन लाइफ, ठीक है। और जो सौरभ ने बोला था दैट इज वेरी करेक्ट कि एक रिस्क का चैप्टर ही वही है कि दोनों तरफ हाई ही रहेगा, लेकिन समहाउ अगर क्लिक कर गया तो इट विल बी गिव यू गुड रिटर्न, और नहीं क्लिक किया तो यू विल बी कंसीडर एज मे बी आपको इतिहास अगर फेलियर बोल दे या फिर जो भी बोल दे, पर दैट रिस्क ऑलवेज देयर। नहीं, फेलियर का रिस्क ही नहीं है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोई फेल नहीं होगा, बिकॉज फेलिंग एंड सक्सीडिंग इज अ जर्नी। मेरा क्लियर देखो, लेट्स से फेल हो जाए, नेक्स्ट स्टार्टअप चल जाएगा, थर्ड स्टार्टअप फिर फेल हो जाऊंगा, सो इसका कोई एंड नहीं है। मतलब एवरी डे इज अ न्यू जर्नी। सो आप आज लूज कर जाएंगे, कल आप जीत जाएंगे, फिर परसों आप लूज करेंगे, फिर तरसों जीत जाएंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप हर बार थोड़ी जीतेंगे, इंडिया हर बार थोड़ी जीतता है। नहीं करेक्ट सौरभ, मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि मैं दो एग्जांपल्स पुट अप कर रहा हूँ। जैसे एक तरफ मैं एग्जांपल देता हूँ धोनी का, ठीक है, जो वर्ल्ड कप 2011 का था या फिर वर्ल्ड कप 2007 का था, कि वो लास्ट ओवर में क्या बंदे का नाम था मैं भूल गया यार, 2007 में वो जो हरियाणा का प्लेयर था, वो ऑलरेडी हरिंदर वो ऑलरेडी पिट रहा था, फिर भी उसको लास्ट ओवर देना, या फिर 2011 के वर्ल्ड कप में कि खुद प्रमोट होके आगे आके खेलना युवराज की जगह पे, तो अगर वो सक्सेस नहीं होता तो इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ फेल्यूर फॉर हिस्ट्री, लेकिन वो सक्सेस हो गया तो वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजाइज्ड स्टेप्स बन गया। बट एट द सेम टाइम द पर्सन्स लाइक धोनी हु टेक द रिस्क टू डू इट। एक दूसरी तरफ एक और होता है, जैसे एक मूवी है 300, बहुत अच्छा मूवी है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द रिस्क, कि जब आपको लेना है तो आप 300 लोग, एक पूरा रोमन एम्पायर का राजा आया हुआ था अटैक करने के लिए, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना था, एंड दे फॉट इट। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, दो दे गॉट डिफीटेड, लेकिन आज हिस्ट्री उनको रिमेम्बर करता है। वैसे ही अब यहाँ पे भी बहुत सारे केसेस है। एक अपना इंडिया का ही केस है, जब सिकंदर आया था और पोरस थे, तो पोरस जान रहे थे कि सिकंदर के सामने में वो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ही टुक अप दैट एंड देन ही वेंट अहेड एंड फोर्ट इट। तो सिकंदर को जीतना पता नहीं जीता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ही कैन एबल टू स्टॉप हिम, नॉट अलाउड टू एंटर इनटू इंडिया। तो दोज काइंड ऑफ पीपल, वो भी है कि हाउ यू टेक द रिस्क कैलकुलेशंस एंड देन व्हाट इज योर इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग टू गो अबाउट इट। तो रिस्क में बहुत हद तक एक गट फीलिंग का भी रोल बहुत ज्यादा रहता है। Sure. Let's hear from Abhiram. So Abhiram, would you like to narrate any risk that you took or future risk or something? Sure, Vishal. So I'll just explain one situation or one scenario where I had to take risk. So I was working in a company called Riverbed Technologies, and it was only like 6 months from the time I joined. But I had to take a decision whether to join Arista Networks or not, because of some visa reasons and some other things. And at that time, it was difficult in the sense that I had a very stable job and people were, I mean, like I was very well settled in that company, and then I started learning, and the people were appreciating my hard work as well. But just for the visa reasons, H1B visa reasons, I was thinking about changing. But at that time, Arista network was, and nobody knows whether it will click or not. So that was a major decision in my life, where I had to think a lot. But as Ravi said, I am a person who takes a lot of risk, at least before marriage, and I believe in gut feeling.
and yeah, that really paid out well of changing the company. Yeah, so that's my experience Sure. in life, and why I took risk, how it paid out. So, Aman, would you like to share something on your risk you have taken maybe? सर अगर मैं एंटरप्रेन्योर लेवल की बात करूं तो मेरा ऐसा कोई रिस्क नहीं है. पर्सनल लेवल तो बहुत सारे रिस्क पर डे चलता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने ऐसा कुछ या कैरियर वाइज जो है मैंने ऐसा रिस्क कभी लिया नहीं है, क्योंकि मैं स्मार्ट डिसीजन पे बिलीव करता हूँ. लाइक एक डिसीजन हो उस पे फोकस उसको सही करने पे वर्क करो. लाइक अभी तक जितना भी मैंने करियर वाइज जो भी चीजें की, लाइक स्टॉक मार्केट से लेके गोल्ड इन्वेस्टमेंट से लेके जो भी इन्वेस्टमेंट किया उस पर पूरा स्टडी करने के बाद ही कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट किया है. तो अभी तक कहीं भी मुझे फेल्योर नहीं मिला है. ठीक है, और पर्सनल लेवल पे मुझे भले ही खतरा बहुत उठाना पड़ा है, बट रिस्क लेना पड़ा है, बट मैं इन कैरियर वाइज मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कभी रिस्क लिया है, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रेटजी के साथ उसको कॉन्कर करने की कोशिश की है. अतुल सर, आप कुछ स्टोरी बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं थॉट लूज हो गया जो स्टार्टिंग में बोल रहा था, बट रिस्क नहीं लेना जो मैंने बोला था ना कि दैट्स द बिगेस्ट रिस्क. और रिस्क के साथ वो जो ट्रेड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रिस्क और रिटर्न क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है. जैसे कि बचपन में हम जो रिस्क लेते हैं तो ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं. जैसे हम लोग बड़े होते आते हैं, एज वी क्रॉस द टीनेज में लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं. जो टीनेज में बच्चे होते हैं, लेट्स से पीपल इन दिस, चाहे वो नमन हो या इवन अभिषेक जनता को मैं टीनेज में काउंट करूंगा, सेजल हो, तो ये लोग जो है थोड़े ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं टीनेज में, क्योंकि उनकी वो एज होता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं. जबकि आप बच्चे होते, बहुत छोटे बच्चे होते हो, तो आपको पेरेंट्स के सुपरविजन में रहना पड़ता है. कहाँ जाओगे, किसके साथ जाओगे, डिसीजन लेते हैं. एडल्ट होते हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. बट एक वो बीच का एक जोन जो होता है ना, टीनेज फेज, कि वहां पे आप बाहर फ्रीडम भी है, आप खेलने जा रहे हो, डांस के लिए जा रहे हो, म्यूजिक के लिए जा रहे हो, तो लिमिटेड फ्रीडम जो मिलती है, तो उस फ्रीडम में आप क्या कर सकते हो, आपके पास आपके रिस्क लेने के लिए होता है कुछ. जो छोटा स्कूल का बच्चा है उसको फ्रीडम नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी के गोदी से क्या रिस्क ले लेगा, या बस में भी जा रहा है स्कूल तो सब कुछ सुपरविजन में होता है. बट वो जो जोन आता है कि बिटवीन कंप्लीट पेरेंटल गाइडेंस एंड देन बिटवीन नो एंड आफ्टर मैरिज, जब आप वाइफ के गाइडेंस में होते हो, बट बीच का जो फेज होता है, जो टीनेज फेज, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिस्क लेने के, गलती करने के और सीखने के. और उसे भी बोलूंगा कि जिसने गलती नहीं की है वो सीख नहीं पाएगा. हाँ, ये कोटेशन है कि दूसरों की गलती सीखना बेटर है, पर जब तक खुद से आप नहीं करोगे ना, तो आप सीरियसली नहीं सीखोगे. आपको स्टार्टअप की कितनी बुक पढ़ लो, कितने लेक्चर अटेंड कर लो, महान मान लो, उसमें मिल लो, जब तक खुद स्टार्टअप नहीं किया तब तक आप सीख नहीं सकते हो कि स्टार्टअप में क्या रिस्क होता है. जब तक आपने खुद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं मैनेज किया कि इतना रेवेन्यू, इतना लॉस, या एम्प्लॉयज को आपको फायर करना पड़ा, या आपको अपनी बहुत सारी चीजों में कटौती नहीं करने पड़ी, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस यू लर्न ओनली व्हेन यू टेक अ सीरियस रिस्क, आपने कुछ अपना खुद का किया. तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि डोंट बी ऑन द साइड लाइन, फेंस पे मत बैठो. अगर आपको तैरना है तो पानी में गोता लगाना पड़ेगा. ऑब्वियसली मेजर्ड कैलकुलेटेड बेटर होता है कि तैरना नहीं आता है तो पहले आप वो जैकेट लगा के कूदो या किसी के साथ में कूदो. लेकिन जिस दिन आपने पानी में गोता लगा लिया, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या डूबने वाला स्विमिंग पूल 6 फुट से ज्यादा वाला, या आपने नदी में लगाया, जब तक आपने गोता नहीं लगाया ना, तब तक आप स्विमर नहीं बन सकते हो. तो रिस्क और रिटर्न का ही सिंपल एग्जांपल स्विमिंग इज द बेस्ट एग्जांपल. या इवन फ्लाइट पायलट जो बंगी जंपिंग करता है, जिसने बंगी जंपिंग किया नहीं ना, वो नहीं जानता है कि बंगी जंप का एक्सपीरियंस क्या है, उसको वो मजा आ ही नहीं सकता कभी. जिसने अचानक माउंट एवरेस्ट पे जाने का, जिसको भी इस तरह का शौक है किसी बहुत बड़े माउंटेन पे जाने का, तो जब तक आप जाओगे नहीं ना, तो आप नेशनल ज्योग्राफिक से देख के आप माउंट एवरेस्ट या किसी माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हो. या इवन अंटार्कटिका जाना हो, या जो भी करना, डीप सी में जाना, तो ये सारी चीजें जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपको वो ना एक्सपीरियंस मिलेगा, ना सीखने को मिलेगा. दैट्स माय थिंक कि रिस्क तो सब लोग लेते हैं, लेकिन कौन कितना लेता है वो अलग लोगों के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है. दैट्स ऑल आई वांट. अभिषेक जनता है, तुम्हारा एक वीडियो शेयर किया मैंने ग्रुप में, कितना बड़ा रिस्क था वो दिन या वो डिसीजन?
रिस्क तो बहुत बड़ा था, क्योंकि बेसिकली हम बार बार बोलते हैं कि हम लोगों का साइड जो ट्रेंडिंग चलता है ना जॉब का, ठीक है, वो बहुत ही बुरा आदत है। एक गवर्नमेंट जॉब पे, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप या कोई भी आईआईटी से पढ़ के कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट में कोई एक सचिवालय में एक छोटा एक कर्मचारी ही क्यों ना हो, लोग उस सचिवालय वाले को ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ के लोगों को स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं पता है कि होता क्या है, इसका करियर क्या है। वो तो खैर मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, पर मजा भी था। और उस डिसीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको तब मिला जब हम अपने क्लास के जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में एक अपने कंपनी में ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाए। बेसिकली वो भी मेरा एक मोटो ही था अपना, एक पॉपुलैरिटी का वो बोले या जो भी बोलिए कि क्या भाई, सब लोग मेरा विरोध करता था कि पढ़ लिख कर क्या रोबोटिक्स बल्ब, ठीक है। तो हम भी दिखलाना चाहते हैं कि भाई जिस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस बैच से पढ़े हैं, और मेरे ही बैच का स्टूडेंट अमित कुमार आज मेरे कंपनी में रोबोटिक्स वाला में काम करता है, तो प्राउड फील होता है। यही चीज तो आपको मतलब दूसरे कहीं नहीं मिल सकता है। आप या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करें या पेटीएम में करें, ये जो आपका फीलिंग है कहीं नहीं मिल सकता है कि आप जिस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, आप अभी पढ़ ही रहे हैं, और उसी बैच में आपका अगर स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है तो उसी बैच के स्टूडेंट को आप हायर करने जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप कितना भी पैसा कमा ले कहीं जॉब करके, वो आपको नहीं मिल सकता है जो स्टार्टअप में मिलता है। यस सजन प्लीज। यस सर, एक्चुअली मैं काउंटर नहीं कर रही हूँ उनकी स्टेटमेंट को, बट जो वो वीडियो थी उसमें स्टार्टिंग में एक लाइन थी नौकर और नौकरी वाली, तो हर इंसान जो जॉब करता है वो नौकर नहीं होता, फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड थिंग, अभिषेक सर, अगर आपकी कंपनी में 25 एम्प्लॉय हैं, वो 25 के 25 एंटरप्रेन्योर्स बन गए, तो आपकी कंपनी में कौन जॉब करेगा? यस, इसका आंसर दें। सारे लोग एंटरप्रेन्योर बन गए तो झाड़ू कौन मारेगा? बता रहे हैं। नहीं, हर चीज क्लियर करना चाहते हैं कि सारे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, इसमें नो डाउट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सुनने में अच्छा लगता है, अरे हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, पर इतना आसान काम नहीं होता है। कितना ये स्ट्रगल होता है, हो सकता है कि 1-2% आदमी को आसानी से मिल जाता है, ठीक है, कि मतलब सक्सेस, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कितना स्ट्रगल होता है, कितना दौड़ना पड़ता है, सबके बस का चीज नहीं है। और जहां तक बतला रहे हैं कि नौकर और क्या मालिक वाला बात, तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कोई भी आदमी फर्स्ट चीज जो गवर्नमेंट जब करता है उसको देसी भाषा में हम लोग पब्लिक सर्वेंट ही बोलते हैं, चाहे वो यूपीएससी निकाल कर क्यों नहीं गया हो। और एक चीज मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोग अपनी कंपनी में अप्लाई करते हैं लोग नहीं, खास करके मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, हम उसको एज ए एम्प्लॉय बोले या जो भी बोले कभी ट्रीट नहीं करते हैं, फ्रेंड दोस्त, ठीक है। तो स्टार्टअप कंपनी में काम करने का यही फायदा होता है कि मतलब क्योंकि वो दर्द समझ पाता है दूसरे का। आप एक टीसीएस में काम कीजिए और एक स्टार्टअप कंपनी में काम कीजिए, दोनों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा, सीखने को भी मिलेगा। और यही एट लास्ट बोलेंगे कि सारे लोग जो बता रहे हैं एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बोल सकते हैं, खास करके जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 3.5 साल भटके हैं, 3 साल, तब जाकर थोड़ा बहुत जो भी पैसा बोलिए नाम मिल पाया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इतना आसान काम नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना आसान काम है, लेकिन स्टार्टअप करना उतना आसान नहीं है। यस अभिराम प्लीज।
Yeah, I just want to. I'm not trying to attack you or anything, but I don't think it is, in my humble opinion, it's not correct to say that working Microsoft is an easy thing, and starting up. Sorry, my internet is bad, so if Yeah. I'm breaking, I'm sorry about that. So I don't think yeah, it's your opinion. I agree, but I don't, and it's a personal opinion, and it's an individual stake. So working in Microsoft is not an easy task, or working in any other company or getting a job over there is not an easy task. So every job has its own difficulties, its own so yes, starting, I mean, like, it's a comparison, right? Basically, whether you become whether you are, it depends upon the situation. That's what I wanted to say. And you can have difficulties even in your job. So it's not like only entrepreneurship is the place where you will struggle a lot, and it depends upon how challenging the work that you are taking, even in any MNC company. So that's what I wanted to say. Sure. डोंट वरी रवि, अभिषेक मैं आपके अच्छा, साथ नहीं नहीं, एक चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे उसके बाद अभिराम जी के, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम हमेशा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देते हैं। बहुत सारे दोस्तों को देखे हैं जो 3.5 साल मस्ती किए, 1.5-2 महीना 3 महीना कोडिंग करें और टीसीएस जैसे, विप्रो जैसे एक कंपनी में जॉब ले ली है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप हमको एक स्टार्टअप बतला दीजिए। एक म्यूट हो गया अभिषेक, म्यूट हो गया। यस यस, फिर से हेलो, यस, हम बतला रहे हैं कि मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल मस्ती किए, कुछ नहीं किए, 1.5-2-3 महीना में कहीं कोचिंग किए और थोड़ा बहुत कोडिंग सीख के टीसीएस विप्रो ऐसे एक कंपनी में, बड़ा कंपनी में जॉब ले लिए। आप हमको 5-10% स्टार्टअप का बताइए कि जो हमेशा मस्ती किया है, एक बाइक आया और एक महीना में सक्सेस हो गया हो। इनफैक्ट 100 बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो 100 में से 80-85 आदमी, 90 आदमी का कहीं ना कहीं जॉब हो ही जाता है, पर एक कितना % आदमी है उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है। हम अपना खुद का एग्जांपल देखें, इतना भटकना पड़ता है ना, पता नहीं, जो लोग स्टार्टअप किए हैं उनको पता होगा। स्टार्टअप में इतना ज्यादा चैलेंजिंग होता है, इवेंट अटेंड करना, पॉपुलैरिटी गेन करना, खास करके जिनके पास पैसा है ऑलरेडी बैकएंड में, तो शायद उनके लिए आसानी हो सकता है। लेकिन हम अपना बता रहे हैं, 13,000 से बिजनेस स्टार्ट किए थे, 13,000 से आज 25,000 रुपया ऑफिस रेंट दे रहे हैं। क्यों पॉसिबल? ये चीज आपको जॉब में कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। मेरे जैसा हम अपना प्राउड फील करते हैं, और शायद एक स्टार्टअप ही दे सकता है कि आज हम सौरभ दयाल हो या अतुल सर हो या कोई जापान का आदमी हो या कोई यूरोप का आदमी हो, उसको हम जब चाहें तब कॉल उठाते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो मेरे से बात नहीं करते हैं, मेरे कैरियर से बात करते हैं। हम जो स्ट्रगल किए हैं, स्टार्टअप किए हैं, उससे बात करते हैं। मेरा फेस देखकर कोई बात नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई भी टीसीएस का या विप्रो के आदमी का नाम बताइए जो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कोई टाइकन का इवेंट में जाकर एक गेस्ट बन के जा सकता है। नहीं मिल सकता ऐसा। बहुत स्ट्रगल होता है स्टार्टअप लाइफ में, इसको इमोशनली बोलिए या जो भी बोलिए। मेरे साथ तो हुआ है, 13,000 से 13 लाख या 30 लाख तक आना है, इतना आसान काम नहीं होता है। Yes, Ravi, please. Then Abhiram can add. Okay, so my point is also on Abhishek video. मैंने मॉर्निंग में भी एक मैसेज डाला था उसके ऊपर में कि अभिषेक आप जो बोल रहे हैं ना, दैट इज 100% ट्रू, लेकिन फैक्ट ये भी है कि आप स्मार्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सिर्फ आप ही स्मार्ट हैं, और लोग भी स्मार्ट है। तो आप उसके प्रेजेंस को नेग्लेक्ट करने से तो ये नहीं हुआ कि आप ही स्मार्ट हैं। एक ये चीज होता है। दूसरी चीज होता है
कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, आप सोचिए कि आपने स्टार्टअप किया है, आज आपके पास में एम्प्लॉय साइज 25 है, कल 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा, मान लीजिए 1000 से ऊपर चला गया, तो क्या आप हर एक एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर पाएंगे? तब आपका जो हायर किया हुआ बंदा होगा, मे बी एचआर होगा, वो आपके फर्दर कोर्स, मतलब जो नीचे का बंदा है उससे इंटरेक्ट करेगा और वो उसको एम्प्लॉय ही कंसिडर करेगा। तो ये जो टीसीएस की बात करते हैं हम लोग, या फिर जो भी बड़े कंपनी की बात करते हैं, वो भी आपकी तरह ही एक बंदा जो आइडिया लेके खड़ा हुआ है और बढ़ते बढ़ते वो भी यहां बढ़ा है। चाहे आप किसी की भी बात कीजिए, इन्फोसिस की बात कीजिए, टीसीएस की बात कीजिए, तो एक ही झटके में आप ये बोल रहे हैं कि जो है वो स्टार्टअप ही है और बाकी जो एम्प्लॉय लोग हैं दे आर लाइक नथिंग। और दूसरी तरफ ये है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसका जनरेशन में आपका ऑफकोर्स हैंड है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में आप ये बोल सकते हैं कि जो 13,000 से आप बोल रहे 30 लाख, उसमें सिर्फ अभिषेक का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। अगर बोर्ड में नाम लिखने जाए, माइंड मैपिंग करने जाए 13,000 से 30 लाख के बीच में, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही का नाम रहेगा। हाँ, हो सकता है सेंटर में आपका नाम हो, लेकिन आपके नाम के साथ में और भी नाम आप लिख पाएंगे, और ये मैं 100% बोल रहा हूं। नहीं, इसमें हम एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, जो आप बता रहे हैं कि औरों का हाथ होता है। औरों का हाथ कब आता है सर? जब इंसान सक्सेस हो जाता है। अगर हम फेलियर हो जाते ना, कोई नहीं पूछने वाला था। आज हम दूसरे को पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, जो भी है, आज हम सक्सेसफुल हैं, तब भी मेरे पास 25 आदमी या 50 आदमी या 100 आदमी है, तभी हम उसको ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब टीसीएस फ्लॉप हो गया रहता ना, तो आज टीसीएस को कोई नहीं जान पाता। हो सकता है कि वो किसी का कचरा का डिब्बा में और टीसीएस चला जाता है। और इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप बोलिए सुसाइड कर लेते हैं स्टार्टअप वाले लोग, क्योंकि जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका स्ट्रगलिंग लाइफ में वो शायद अकेला होता है। आपका जॉब वाला जो पीरियड होता है, उसमें आपको बहुत सारे लोग साथ देंगे। ठीक है, आप एक कॉलेज में जाइए पढ़ाई करने के लिए, एज फॉर एग्जांपल, तो आपका मेंटालिटी रहता है कि हमको टीसीएस में जॉब लेना है, विप्रो में लेना है, और इनफैक्ट आप एक कोडिंग सीख रहे हैं, तो आपको कॉलेज में हजारों आदमी मिलेंगे, दोस्त भी मिल जाएंगे, ठीक है, फैकल्टी भी मिल जाएंगे। पर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप छोटा 13,000 20,000 से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, और वो कंसेप्ट लेकर आप अपने दोस्तों के पास जाइएगा ना, आप अपना भी पैसा लगाइएगा और बोलिएगा कि भाई तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, फिर भी कोई एग्री नहीं हो पाता है। टीचर के पास जाइए कि हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले, वो भी आपको जल्दी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए हम स्टार्टअप को हमेशा प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक तो मेरा कम्युनिटी है। सेकंड चीज की स्टार्टअप का मेन क्या होता है कि स्ट्रगलिंग लाइफ में मैक्सिमम स्टार्टअप अकेला होता है और अपने दम पे खड़ा होता है। बाद में वो सक्सेस होता है, लोगों का साथ आता है, कारनामा आता है और पॉपुलर होते जाते हैं, जो भी बोलिए। अभिराम शायद Yeah, so अच्छा अभिराम पहले, चला अभिराम बोल। yeah, so okay, let me rephrase what I was trying to say. So Abhishek, I'm not denying the fact that there is struggle even in there. Okay, if we take the whole spectrum, right? The number of people who took the path of entrepreneurship versus the people who took a normal job. Yes, there will be more percentage of people who had struggled a lot in entrepreneurship world. But my point is, you made a fact or a statement that where you said taking entrepreneurship will give more pride than working in a Microsoft or a TCS. That's what I'm trying to get. Think again, it is subjective. In my opinion, even if you are working at a TCS or Microsoft, I know so many people who worked hard and who struggled a lot to achieve so many great things. You're talking about TiCon conference. I can give so many examples in a similar world, even in the normal enterprise world as well, where you are doing a software engineer's job, or it could be any job. So
what I'm trying to say is the pride is again subjective. You may say that people who are doing entrepreneurship has pride because they struggled a lot, but that doesn't mean that you will not get same pride in a normal employment. So that's what I'm trying to get at. Yes, sir. I think what Abhishek wanted to mean is कि working, उन्होंने ऐसे कहा कि working in a startup, or I'll put it my way, I'll put my comment, a similar profile. For example, retail sales head of Clear Dekho versus retail sales head of Lenskart. There are more challenges. I'm not saying, I'm sure Lenskart के targets 10 times होंगे, 20 times होंगे, but वो achieve करना उतना आसान भी होगा Lenskart के लिए, Lenskart के sales के लिए. But despite the fact कि मेरा absolute value कम है, मेरा targets कम होंगे, still it will be much tougher to achieve my targets rather than to achieve a Lenskart sales head का जो target होगा. I think Abhishek ये बोलना चाह रहे थे. For a similar profile, relatively working in a startup is much challenging, much tough as compared to working in a TCS or a Wipro. I am saying this because I have worked in Wipro, Paytm, HCL, worked for 7-8 years, and then running Clear Dekho. So if I am saying this, I'm talking about my own experience. I'm not making a story. Okay, let's go in the hand raise order. Hari Okay. नहीं एक करेंगे. हरी रवि अभिराम. Yes. अच्छा टाइम भी खत्म हो जाएगा शायद. Please. So तो मैं यहाँ पे I just want to make sure whether it is startup or you are an employee of Microsoft or Google, make sure when you tell your story, you are not making a noise. सामने वाले को interesting feel होना चाहिए. If you are making noise, then even your startup is failed, your employment is failed. So you have to think before how you explain, how you put things. Though you are a startup, though you have struggled a lot, but if you are only making noise, जो ऐसा कोई spectator है या जो सामने जो आपके है उसको कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि this is just he's just अपना डिंडोरा पीट रहा है बस. तो means I don't know what to say, but हाँ, so ये बस अपना ही गुनगान गाते जा रहे भाई, चलो निकल लो यहाँ से, बोर करेगा ये और. So that feeling नहीं आनी चाहिए. Make sure people listen to you if you are a startup, and if you are an employee also, still you cannot do मेरे यहाँ पे ऐसा होता है, this is that, Google is this, तो blah blah नहीं लगना चाहिए कि people should take interest. That is the real meaning of success. But if you are just doing something for show off, so it's very it's not true success for me. Yes, Ravi. सौरभ, I will put you one example. वो भी बहुत live example है, मेरा experience है, ठीक है. As a employee, मैं वोडाफोन में ज्वाइन किया था एज एमटी, ठीक है. 3 months में रिस्टोर होने के बाद वोडाफोन में मैं गया मार्केट में गया था, और गया मेरा बिहार का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था. आई वाज नॉट इन बिहार सिंस बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ. मैं बाहर रहा था, गुजरात में रहा था, उसके बाद महाराष्ट्र में रहा था, और मैं बिहार में कभी गया ही नहीं था. बिहार के लोग का लैंग्वेज और वहां पे मतलब जिस तरह से लोग का मेंटेलिटी है वो एक पूरा मेरे लिए नया था. और कंपनी मुझे वहां पे भेजी थी कि यू गो एंड डू योर वर्क. जब मैं जिस मार्केट के लिए गया था वो गया का मार्केट था, और गया का मार्केट पहले पटना में आता था. पटना और गया दोनों एक ही जोन था वोडाफोन के लिए. जब मैं गया था उससे अराउंड 6-7 months पहले वो अलग होके एक गया जोन बन गया था. और जब मैं गया था तो वहां पे गया का टोटल रेवेन्यू था वोडाफोन के लिए हाईएस्ट लास्ट सिंस 1 year, 2 years, 3 years, सबसे हाईएस्ट था 29 लाख रुपीज जो बिजनेस पर मंथ वोडाफोन की थी कभी एक टाइम पे. और जब मैं था वोडाफोन में उस टाइम पे बहुत सारी करीब 13 कंपनियां थी टेलीकॉम की, जो कि वोडाफोन एयरटेल से काफी सस्ती सिम था. एयरसेल का था, टेलीनॉर का था, बहुत सस्ते सिम बिकते थे. उस मार्केट में जाने के बाद अप टू कॉलेज टाइम मैं ना
हीरो होंडा का करिश्मा चढ़ता था और मेरे पास वही गाड़ी था, मैं लेके गया था गया मार्केट में। जब मैं गया वहां पे 1-2 महीने रहने के बाद में मैं फीडबैक कलेक्ट किया कि मार्केट हो नहीं रहा है मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तब मेरा एक छोटा सा एफओएस था, उसके साथ में मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे बैठा हुआ था। उसने बोला कि सर आप करिश्मा गाड़ी से मार्केट में घूमिएगा तो आप लोगों से जुड़ेंगे कैसे। मैंने नेक्स्ट डे करिश्मा गाड़ी घर पे रखा और होंडा शाइन जाके बुक किया, लेके आया, और उस दिन से अभी तक ऑलमोस्ट मैंने सबसे ज्यादा ट्रैवल 83, 84, 90 किलोमीटर पर डे वोडाफोन में ट्रैवल करता था। विद इन 6 मंथ मेरा मार्केट 29 से 53 लाख गया, और गया जोन पूरे ईस्ट जोन में 8 जोन होता है। 8 जोन में हम लोग सितंबर मंथ में ईस्ट जोन का ट्रॉफी लिए थे, और मैं एम्प्लॉय था, मैं कोई एंटरप्रेन्योर नहीं था। वहां पे जो सेल्स हेड था उसको पता हुआ भी नहीं था कि गया से मेरा बिजनेस कितना आ रहा है, और मेरे अंदर में सिर्फ ऑफ रोल में कैंडिडेट से एफओएस रहते हैं, वही थे। लेकिन हाउ यू टेक द मार्केट, हाउ यू प्रोग्रेस इट, एंड लोगों से कैसे आप जुड़ते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर पे कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप मार्केट को अप करते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि आप एज ए एम्प्लॉय भी वो काम कर रहे हैं जो खास करके सेल्स में होता है कि एज ए एम्प्लॉय भी फिर भी आपका मार्केट आपका रहता है। सेम काम मैंने हनीवेल में भी रेप्लिकेट किया है। हनीवेल गोवा में थी ही नहीं, मैं पुणे मार्केट देख रहा था, और पुणे और अप कंट्री 2 मार्केट हुआ था, मुंबई पुणे और अप कंट्री मार्केट हुआ करता था, और गोवा मार्केट ही नहीं था। हनीवेल का नामो निशान नहीं था जब मैं हनीवेल ज्वाइन किया था बिल्डिंग ऑटोमेशन सेगमेंट्स में। और गोवा का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट था। मैंने पहला प्रेजेंट किया गोवा मार्केट के लिए कि फार्मा के लिए एटलीस्ट बेस्ट मार्केट है गोवा, हम लोग वहां पे पुशिंग कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर में मैंने गोवा मार्केट चालू किया और काफी अच्छा किया। हालांकि हनीवेल फिर मैं बहुत जल्दी छोड़ दिया था क्योंकि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया उसके बाद में, तो वो है। और बैंगलोर में भी मैं अपना मार्केट करता हूं। तो ये है कि तो व्हाट इज योर पॉइंट रवि? नो, माय पॉइंट इज कि आप जैसे कि पॉइंट बोल रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप का, नहीं एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर। रवि यू आर सेइंग कि जॉब में रह के भी ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योर वाला लाइफ जिया जा सकता है, राइट? जिया जा सकता है, और उतना ही सारी चीज इन्वॉल्व रहती है। प्लस आप उसके जैसे मैं जो कमेंट किया था ना, वो अभिषेक का जो वीडियो है उस पे कमेंट किया था। वो वीडियो में पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छा बोलता है कि लेट बी अ क्रिएटर ऑफ जॉब, लेकिन दूसरे टाइम में बोलता है कि आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आप जॉब क्रिएशंस में ध्यान दीजिए rather than कि जॉब कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सेशन में बोलता है कि आई हैव 25 पीपल हु इज वर्किंग अंडर मी, या मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो वो मुझे मिसलीडिंग लगा कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बी अ जॉब क्रिएटर, दूसरी तरफ आप जॉब पे रख रहे हैं लोगों को। तो फिर उसके सामने में आप जाके क्या बोलेंगे? जिसको आप जॉब पे रख रहे हैं उसके सामने में आप जाके क्या बोलेंगे? क्योंकि उसके सामने तो आपको हर रोज खड़ा रहना है। तो इससे बेहतर है कि आप दोनों को भी वैल्यू दीजिए। एंटरप्रेन्योर का एक अपना वैल्यू है ही है, प्लस ऐसा नहीं है कि वो जो एक सेगमेंट चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, या फिर जो लोग जो आपसे पहले आके आप ही की तरह उस आइडिया को जनरेट करके उसको इतना बड़ा बनाए हैं, उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर मतलब वो वैल्यूलेस हो जाता है। नहीं That is my point. एंटरप्रेन्योर का कहाँ वैल्यू है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का वैल्यू है। नहीं, सौरभ ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, और वो चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में रहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपका मे बी एक फेल हो जाएगा, वो आपको लर्निंग देगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, और वो एक जर्नी रहता है, वो चलते रहेगा, इन प्रोसेस रहता है, वो कभी बंद होना नहीं है। सर मेरा बात सुनिए, बी प्रैक्टिकल बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है लोग। आप एज ए स्टूडेंट है, एक फेल्योर 2 फेल्योर ऐसे चलता रहेगा, और आप खाइएगा कहाँ से? बाद में पेरेंट्स लात मार के भगा देंगे कि दिन भर फेल्योरे कर रहा है, खाइएगा कहाँ से? जब तक आपके पास बैंक में भी तो पैसा होना चाहिए, या बाप मुकेश अंबानी होना चाहिए, या उसले थोड़ा बहुत मतलब बैंक में भी पैसा होना चाहिए। मेरे अभिषेक वो बात एब्सोल्युटली राइट है। तो वो भी बात आप पे भी लागू होता है ना कि आज आप 25 लोगों को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपके बैंक में पैसा है। जिस दिन आपके कंपनी के बैंक में पैसा खत्म हो जाएगा, वो 25 लोगों को आप लात मार के निकाल ही देंगे, या 25 लोग आपको लात मार देंगे। वही तो बात का भी तो वजूद है। बोलते हैं
नहीं, वजूद हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो अगर दूसरे जगह जाकर जॉब ज्वाइन कर सकता है, वो टीसीएस से छोड़ता है तो विप्रो में जाएगा, विप्रो से छोड़ता है तो कॉग्निजेंट में जाएगा। लेकिन हम लोग जैसा आदमी का क्या होगा जो 4 साल बीटेक करने गए थे, 3.5 साल अपना पूरा करियर स्टार्टअप में लगा दिए, और एक बार पता चला कि फेलियर हो गए, ना ये एक अच्छा सा हिस्सा है, ना घर का ना घाट का, हम लोग कहाँ जाएंगे। और ये स्टार्टअप के बारे में जल्दी एक गवर्नमेंट अभिषेक आई थिंक एंटरप्रेन्योर का दर्द हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन मैं एक पॉइंट उनके साइड से बोलता हूँ, एम्प्लॉय साइड से मैं ये बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योर करना आपका चॉइस है, तो उसके जो दुख और चैलेंजेस है वो आपका चॉइस है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहे हो तो इट कम्स विद सर्टेन साइड इफेक्ट्स, तो लेट अस नॉट क्राई ओवर इट, और वो बोलने की जरूरत नहीं है। आप उससे लड़ो और परफॉर्म करो। बोलने की जरूरत नहीं है कि ये चैलेंजिंग है, ये है, एंटरप्रेन्योरशिप मुश्किल है, एम्प्लॉय रहना तो बहुत आसान है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेट द वर्क स्पीक। ये शायद आपकी बोली लोग को ऑफेंड कर गई हो, शायद मुझे ऐसा लगता है। लोग बोल रहे हैं कि आप नॉइस कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं कि आप नॉइस कर रहे हो। मैं तो ये बोलूंगा कि भैया आई मीन नॉइस करो, बिना नॉइस करके क्या करोगे? नहीं सुनना है तो आप कान में रुई लगा लीजिए, भाई आपको नॉइस नहीं सुनना है तो वॉल्यूम लो कर लीजिए, पर नॉइस जो कर रहे हो उससे नॉइस करने दो। आज हमने फरीदाबाद में अपना 63rd स्टोर खोला है। जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कोई नॉइज नहीं किया। सुबह 12 बजे की ओपनिंग थी, मैंने किसी को व्हाट्सएप नहीं भेजा और मैं भेजूंगा भी नहीं, तो मैंने भैया नॉइज नहीं किया, पर खुल गया मेरा 63rd स्टोर। तो ये नॉइज करना ना करना तो अपना चॉइस होगा। तो मैं इस पे बोलना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर का नॉइज भी जल्दी कोई नहीं सुनता है ना, कहाँ सुनता है कोई एंटरप्रेन्योर का नॉइज? छोड़ो ना यार, छोड़ो ना अभिषेक, अब तो सुनता नहीं होता है, उसका क्या देखना है। यस, अब तो सर आप टाइम हो गया है। सौरभ ने भी नॉइज क्रिएट किया, स्टाइल डिफरेंट था। अभिषेक ने भी नॉइज किया, स्टाइल डिफरेंट था। लेकिन जितना सौरभ अपने क्लियर दिखो कि भाई नॉइज करता है, अभिषेक को सौरभ से सीखने की जरूरत है। नहीं कैसे सर, सौरभ स्टाइल, नहीं मुझे बोलने दीजिए, उसका सौरभ ने 3 साल मराया है, उसके बाद ऐसा नॉइज किया है। पहले मैं भी वैसे ही करता था जो अभिषेक करता था। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्या नहीं किया, मैं अभिषेक को एनकरेज कर रहा हूँ रादर देन पुटिंग हिम डाउन कि भैया तुम नॉइज। मैं भी एनकरेज ही कर रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि नॉइज अभिषेक ने किया। अभिषेक ने छपरा के स्टाइल में, मतलब कि गांव के या तो उस स्टाइल में नॉइज पड़ेगी तो अलग। सौरभ जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में नॉइज किए। अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो अंग्रेजी मीडियम का नॉइज भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता है, और हिंदी मीडियम का नॉइज भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता है। तो अर्नब गोस्वामी और पन्ना रॉय टाइप का नॉइज तो दोनों बजाते हैं, बट स्टाइल अलग होता है, सोफिस्टिकेशन अलग होता है, तरीका अलग होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप को नॉइज करना पड़ता है क्योंकि लोग, दुनिया में इतना क्राउड है, नॉइज है ना, क्योंकि सुनता नहीं है। उधर से कोई बहुत बड़ा $1 बिलियन वाला बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उधर से मतलब क्या कहते हैं, बिल गेट्स कुछ बोल रहे हैं, उधर से एलॉन मस्क कुछ बोल रहे हैं, उधर से अजीम प्रेम जी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। तो उस केस में अभिषेक जैसे यंग एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर को थोड़ा ज्यादा हल्ला मचाना पड़ता है, अदरवाइज लोग नोटिस नहीं करते हैं। बट हाँ वही है कि इसका रीजन एक और भी है कि हम एक कुमार विश्वास को फॉलो करते हैं, तो वो भी जो दिल में आता है वो बोल देता है। हम उसको अपना आइडियल गुरु जो भी बोलिए वो मानते हैं। तो मेरा भी वही याद, पीछे में हम किसी का वो कुछ नहीं बोलते हैं, जो मेरे दिल में आता है खुलकर बोलते हैं और बोलते रहेंगे आगे भी शायद। और जो लोग जानते हैं अभिषेक को, जानते हैं कितना डाउन टू अर्थ है, कितना हम्बल है, सबको सरसा ही बोलता है, तो जो जानते हैं। बट मेरा कहना है कि हाँ, ये अभिषेक के लिए बोल रहा हूँ, अभिषेक माने ना माने, कि सौरभ के जैसे लोगों को पीआर अपना रखना चाहिए कि सौरभ आप मेरे लिए उस ऑडियंस में, अंग्रेजी मीडियम ऑडियंस है ना, तो वहां पे सौरभ जी आप थोड़ा बोले। लेकिन हालांकि सौरभ खुद अभिषेक का भी एक्सपीरियंस है टाई के मीटिंग से, आई रिमेम्बर कि कभी कभी लोग वो अर्थिनेस, वो नॉन सोफिस्टिकेटेड या रफ एजेड जो बोलते हैं, उसको आजकल प्रिफर करते हैं, क्योंकि ज्यादा सूड अंग्रेजी मीडियम को लोग थोड़ा नकली मांगने लगे हैं। तो इसलिए सौरभ का कभी कभी रफनेस जो है ना, शार्प, वो कभी कभी काम आ जाता है आज के जमाने में, क्योंकि लोगों दिखावटीपन से आजकल लोग भाग रहे हैं कि बड़ा अंग्रेजी में प्यार मीठा मीठा बोल रहा है, अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी में बोल रहा है, स्टीफेंस ऑक्सफोर्ड वाला, लेकिन
बोलता कुछ है करता कुछ है। अभिषेक के बारे में ये है, नहीं, ये जो मैं बोलता थोड़ा है वो डिसएग्री करता है। करूंगा थोड़ा सा अतुल सर से। हैंड रेस मैं अभिराम मैं सेजल Yeah. मैं और अभी हाँ Yeah, अभिराम Abhi- पहले अभिराम yeah. मैं डिसएग्री करूंगा अतुल सर और सौरभ अच्छा हाँ से। ठीक है अभी डिसएग्री का शायद टाइम आप में आएगा। अभिराम को माइक देके रिस्क ले रहे हो। अभिराम No, you are not. So मेरा ये when I joined the call today, मेरा ये मन था कि मैंने आज मैं बस नहीं सुनना, बोलूंगा हाँ आज मैं नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ सुनना है सबको। और मैं रोज प्रोवोक कर दे रहा हूँ तुम्हें, कितना बड़ा रिस्क है। हाँ, please। अभिराम यही बात हर बार बोलते हैं। ऐसे ही करते हैं। सर नहीं, if you compare, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट। मैंने जो नॉइस का जो पॉइंट उठाया था, सो आई मीन टू से कि यू शुड क्रिएट इंटरेस्ट, और नॉइज से आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। नॉइज इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस। Why should we create interest? नहीं Why should we create आई थिंक interest? आते yeah, can I just finish my, yeah, can I finish Yeah, sure. my Yeah. even in previous sentence I was very clear that I was not trying to discourage or I was not trying to attack. मेरा सिर्फ ये बोलना है कि like when we make a statement, right, like you will get more pride in entrepreneurship more than a software employee in TCS or Microsoft. That's the only statement that I was trying to address. Nothing more than that. I agree that there will be more struggle, there will be more all-round development for an entrepreneur, but there is equal opportunity for a person who is doing a normal employee job as employment job as well. So that's the only thing that I wanted to talk about. Yeah, Sejal, please. Okay, finally. Sir, नहीं तो हैंड रेस का तो दिख अभिषेक रहा होगा ना सीक्वेंस। यस कंटिन्यू। अभिषेक सर के लिए मैं बोलूंगी कि सर ने जो जर्नी की है ना, आई मीन एवरीवन कांट डू दैट। वो 4th ईयर में एंड व्हाट ही इज डूइंग करेंटली वो कोई नहीं कर सकता। सो एंड अबाउट मेकिंग नॉइज, तो कहीं ना कहीं जो इंसान स्ट्रगल करता है वो कभी ना कभी बता ही देता है कि मैंने स्ट्रगल किया है। और मे बी इन नियर फ्यूचर ओनली ऐसा टाइम आए जब अभिषेक सर का एक एक वर्ड इतना वर्थ इट हो जाए कि उन्हें लोग स्पीच देने के लिए बुलाए, या फिर ही शुड गेट पेड फॉर एवरी वर्ड ही सेड। तो आई गेस इट्स नॉट अबाउट मेकिंग नॉइज। जो वो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता उनकी जैसी एज में, एंड आई जस्ट अप्रिशिएट इट। और जो मेरा डिफरेंस होता है वो कभी कभी थॉट्स में हो जाता है। एंड माय पॉइंट वाज कि जॉब वाला इंसान भी स्ट्रगल करता है, एंटरप्रेन्योर भी स्ट्रगल करता है, बट ऑन डिफरेंट फेजेस। तो वो दोनों चीज अलग है, बट आई अप्रिशिएट इट एंड आई डू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम। इट्स नॉट, आई मीन जब भी उनकी स्टोरी सुनते हैं तो वी गेट सम इंस्पिरेशन। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। Plus one for Sejal. मैं बोल रहा हूँ अभिषेक सेजल के साथ पार्टनरशिप करो, सेजल को अपना पीआर रखो एंड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ रवि जी बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, माय पॉइंट वाज नॉट टू डिस्करेज अभिषेक। अभिषेक जो आपका वीडियो है, माय पॉइंट वाज एक्सक्लूसिव टू योर वीडियो, ठीक है, कि आपने जो वीडियो में बातें कही है ना उसको और मतलब राइट वर्ड यूज करके यू कैन पुट अप मोर इफेक्टिव। यार वो लाइव राइट वर्ड वाला 1-2 दिन में आएगा। रवि टारगेट ऑडियंस भी अलग अलग है ना रवि, टारगेट ऑडियंस कमियां निकाल रहे हैं। नहीं तो उसने तो बोल दिया है ना, जो उसके मन में था उसने बोल दिया। अब रवि आप बोल रहे हैं उसको टोन डाउन करो। टोन डाउन वाला चीज तो वो बोल रहा है उसका नेचर ही नहीं है, उसको डायरेक्ट नहीं बहुत अच्छा लाइन आ गया। I am not saying Abhishek to tone down. Your tone, your energy level in the video is very good at 100%. My only point was कि when you make things, don't make an oxymoron statement. एक ही टाइम में आप बाई डायरेक्शनल बात कर रहे हैं। नहीं एक चीज हम लास्ट में बोलना चाहेंगे। कुमार विश्वास का लाइन बार बार याद आ जाता है कि बहुत अच्छा लाइन बोला था अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो बोले दरबार सजाओ, वो बोले दरबार लगाओ, वो बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ। वो
वो क्या स्टेटमेंट यूज किया था, वाणी पे इतना अंकुश कैसे सहते हैं, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते हैं। तो उसी तरह हम भी बोलते हैं, हम एंटरप्रेन्योर के वंशज चुप कैसे रहते हैं। एंटरप्रेन्योर कभी चुप रहने के लिए पैदा ही नहीं होता है, वो हमेशा बोलता है, हर मंच पे बोलता है, जहां स्पेस मिलेगा वहां बोलता है। तालियां तालियां तालियां। तो अभिषेक का कहना है कि जो उसने बोला उसके दिल में वही था, वही मीन कर रहा था। तो बाकी लोग क्या अरे सोचते हैं वही मुझे तो फर्क नहीं अच्छा चीज पड़ता। है कि बोला जाता है नहीं कि एंटरप्रेन्योर के लिए जीत होती है कामयाबी, नशा होता है कामयाबी, और यहाँ तक कि मजबूरी होती है कामयाबी। एंटरप्रेन्योर के अरे यार तो रूल ही होता है उसका। सही तो है, 130 करोड़ जनता को थोड़ी खुश करना है हमें यार। आधे वही लोग तो को तो बात नॉइज है। लगेगा, बाकी सबको उसी में सुर और ताल दिखेगा, वो सुनेंगे अगर हमारा नॉइज। इंसान भगवान से भी खुश नहीं है तो आप तो कहीं लगते ही नहीं हो। डोंट ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी, हाँ डोंट ट्राई टू अरे हम तो सेटिस्फाई अपने ये पापा को भी एक हाँ खुश नहीं कर पाए, तो दूसरे को कर क्या करेंगे। हम तो अपने आज तक के पापा को भी खुश नहीं कर पाए हैं, तो दूसरे को क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को क्लियर देखो में आई थिंक 3.5-4 साल हो रहा है। माई फादर हैज नॉट विजिटेड cleardekho.com, मैंने भी उनको खुश नहीं किया है। माई फादर हैज नॉट विजिटेड माई 2-story बिल्डिंग। सब लोग आए, मेरे कितने एम्प्लॉइज के पेरेंट्स आए, मेरे पार्टनर के पेरेंट्स आए, सब लोग आए। ही हैज नॉट इवन सीन माई ऑफिस, इतना लैविश ऑफिस है। आई एम सो प्राउड, मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप देखें, वो मम्मी फिर भी देखे, बहन देखे, मेरे पापा देख नहीं पाए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो देखें। मुझे खुशी होगा, मैं उनको कुछ अपना अकॉम्प्लिशमेंट दिखाऊंगा। सो यार दुनिया में आप सब किसी को खुश कर नहीं सकते हो, सो ठीक है, लाइफ इज नॉट फेयर, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट तुम्हारे फेयर। पापा चश्मा कहाँ से खरीदते हैं फिर? क्लियर लेंस से नहीं कार्ड से। खरीदते हैं, अच्छा, खरीदते वहीं से है, स्टोर में नहीं है लेकिन। अच्छा, कहीं और से खरीदते हैं। अच्छा, ओके ओके, ऑफिस में है। नहीं सर, तो ये ये सपोर्टिंग कहना भी हो रहा है चैट में, नहीं राइट? नहीं, इनडायरेक्टली। हम बतला रहे हैं ना, ये सौरभ से जितना आसानी से कह दिए, यही बात हम बार बार बोले हैं। इतना आसानी से कह दिए, लेकिन उनके अंदर क्या लगता होगा, उनके अंदर क्या फीलिंग होगा, वो चीज वही समझते हैं। इतना सक्सेसफुल के बाद भी मेरा ये घर वाला जब विरोध में रहता है, तो ये वर्ड एक कहना आसान है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या चलता है, कितना इमोशन रहता है, ये हर कोई समझ जो सकता है। आग जल रही है अभिषेक के दिल में या सौरभ के दिल में, वो दुनिया को दिख नहीं रही, वो उनके अंदर आग जल रही है। और कभी कभी वो वर्ड्स के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की है। अभिषेक ये ठीक बोल रहा हूँ? जो Sir, एंटरप्रेन्योरशिप का but फायर। we respect it. I mean, I genuinely respect what you did. Not everyone can do. ठीक, तो आई थिंक इस टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा रिस्क के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बात करते हैं कल, ठीक है? आज थोड़ा ओवरव्यू हुआ, ओके, देन आई थिंक 15 मिनट आगे भी हो गए। तो गुड नाइट एवरीवन, लेट्स रिज्यूम टुमारो।